what is the difference between an average content creator and a luxury lifestyle influencer? I don't sell luxury visuals. I sell luxury mindset. You can't do anything and everything on the gram. Virality के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते. मतलब आप directionless हो यार. It's such a chaotic profile कि कुछ भी कर रहे हैं. Nobody is liking you. I'm sorry. अच्छा. My product is me. I am the product. That's what people don't understand. If I sell myself really well, I can sell shit on the gram and people will buy it. बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं. कॉर्पोरेट आपको बहुत कुछ सिखाता है एक्चुअली. हाउ टू हेट समबडी एंड स्टिल बी लाइक ओह माय गॉड आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग. कॉर्पोरेट आपको ये सिखाता है हाउ टू प्रिटेंड दैट यू आर वर्किंग फॉर योर नेक्स्ट प्रमोशन व्हाइल यू आर इमोशनली प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द रेजिग्नेशन. What is that one hard truth about career growth जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा? आपको ना अपनी ऑडियंस के सबकॉन्शियस से खेलना है बस, और आपको अपने क्लाइंट के भी सबकॉन्शियस से खेलना है. फॉर एग्जाम्पल दैट. But what do you think is the darkest reality of content creation जो कि लोग नहीं समझ पाते before getting into it? Unfortunately, you are judged by the numbers. एक और harsh reality है, सही लोगों के साथ दिखना बहुत जरूरी है और गलत लोगों के साथ जो लग्जरी बैग्स नहीं कैरी कर रही है और अगर मैं उसके साथ दिख रही हूँ तो आई एम पुटिंग माई इमेज ऑन स्टेक. How many people have you met in your life who were 110% fake influencers? 90% of them. यार रेंट पे कार्स लेके showing that product as yours, आप कब तक कर लोगे? It's a very short-lived life. Your YSL is rented, babe. I know. अच्छा, ये भी रेंट पे मिलता है. बट ऐसी मार्केट जहाँ पे सब कुछ बिक रहा है, हाउ कैन अ पर्सन बी रेलेवेंट एंड गेट मोर ब्रांड कोलैबोरेशंस? जहाँ सब बिक रहा है तो आप वो बेचो जो नहीं बिक रहा, which is Hi Bani, welcome to the Misfit Humans podcast. We've already had a lot of good conversations before we start, as we've already started. Yeah. Oh, nice. Great. Thank you. Thank you for having me here. Founder, CEO, lifestyle influencer, luxury lifestyle influencer, right? बहुत सारे लोग नहीं होते क्योंकि Amazon Live Creator, 5,000 plus campaigns, भाई क्या क्या कर लिया, 140 plus K audience भी है. Yeah. Influencer, marketing, PR strategist, and you worked with big brands, corporate brands. Yeah. Yes. अब आगे क्या करके मानोगे? बहुत कुछ यार आगे. अब बस एक ही सेगमेंट रह गया है, वही शुरू करना है. You might throw me out after this. पॉडकास्ट मत बोलना भाई, तो सब कुछ चलेगा. बस अब पॉडकास्ट ही रह गया है. बट करो, है ना? करो. I think so. I think everybody should start doing podcasts. You are my inspiration. Yes. In the era of podcasting, everybody is doing creator podcasting. बनना है, सबको podcaster बनना है. I mean, why? Like, jokes apart, but you know, being here, I mean, it's not an easy job. It is not. You have to like do the research. You have to. I mean, people just see that 1 hour of podcast, but there's the entire week that goes behind it, and I think it's so intense and people just see a gist of it and they're like, oh my god, that's so great, I should also start. And but क्यों? Like, इससे मुझे ऐसा लगता है कि लोग आते हैं मार्केट में, स्टार्ट करते हैं, मार्केट को डाइल्यूट करते हैं, चले जाते हैं. I think कोई डाइल्यूशन नहीं हो रहा. You think so? Yeah. That's the reason I asked you to start it. Right. हाँ, of course, your content would stand out, but then there are few brands. Similarly, there is an audience जो ये नहीं समझती है, right? So जैसे ठीक है, audience perspective से I still can understand, but from brands perspective, I again will not take names, but कई बार ना brands सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सस्ते में आ रहा है, कह सकते हैं. Maybe commercials over content is what brands prefer at times, which is bizarre, I feel, because eventually it's turning you down. I mean, as a brand. ऐसा भी होता है. ऐसा होता है. आप जो काम एक specific budget में कर रहे हो, and वही लोग probably उसके 1/4 में कर रहे हैं. Brand does not see the value that I'm bringing to the table. Brand just sees.
Actually exploited भी बहुत ज़्यादा है ना. Middlemen, PRs being in the picture, right? So it's way too exploited. Like they'll quote something to the brand, then they'll quote half a price to you. Clarity से Rest- बताओ. I really want to understand. This is very interesting. Yeah, so okay, I'll start from the beginning. So people ask me that why did you start your PR company? सब सही तो चल रहा था. Because मैंने जो challenges face किए थे, I really wanted कि वो उन चीज़ों को ना, वो जो gap है ना between the brand and the influencer, उसको bridge किया जाए. I really wanted to cut down that gap. And for example, you are a brand and I'm quoting you for XYZ influencer, maybe $150,000, ठीक है. right? I go to the influencer, I tell the influencer यार 70,000 ही है budget. Influencer ने quote किया 120. ठीक है. आप ऑलरेडी डेट कोट कर चुके हो एंड देन आई टेल द इन्फ्लुएंसर यार नहीं है प्लीज दिस एंड दैट ये वो यू अंडरस्टैंडिंग सो दैट इज वेयर द गैप इज आई मीन you should out and loud have your own commission from the brand and from the influencer. That is fine, but this unsaid cap cutting is something which exploits the industry. So what you're trying to say, it's a middleman's market? Of course. Don't you think so? I mean, you are also into the same industry, under the same umbrella, right? It is the middleman's market. But यार मैंने अभी तक इस तरीके का कुछ फेस करा नहीं है, to be Okay. very honest. Because you are generating more of your content and the brands are not interfering in the picture more so, right? And yours is very authentic, raw content, which audience like. So it's your connection with the audience. But with us, the brand is also involved. Like we're doing the commercials and so many brand sponsored videos. There it happens, and that is why I wanted, like, when I go in a meeting with a brand, I out and loud tell them that this is what I will charge. This is my cut. If you want to probably make a direct payment to the influencer, you can. I mean, why are influencers cutting down on quality? Nobody understands that. सस्ते photographers hire कर रहे हैं, then सस्ते editors, वो content आ ही नहीं, वो idea बाहर आ ही नहीं पा रहा है. It's not getting, it's not commercializing that way. Why? Because आपको पता है यार 70,000 हो गया, 20,000 25,000 तो प्रोडक्शन ही ले जाएगा. देन आप सस्ता प्रोडक्शन हायर करोगे. So this is why You'll I cut started. down on a lot of things. बहुत सारे जगह से आप पैसे बचाने की कोशिश करोगे. आप मेकअप अपना खुद करोगे, आप हेयर डू अपना खुद करोगे, आप स्टाइलिस्ट नहीं हायर करोगे, आप सस्ता फोटोग्राफर हायर करोगे जिसके साथ probably a team of 2 नहीं आ रही है. So he is the one who's shooting. He's not shooting with the gimbal and he's not using he's not using lights and whatnot. So of course the output would not be up to the mark as compared to others. I agree with you on that. Yeah. But यार मुझे एक चीज बताओ, मेरा पर्सनल परसेप्शन है इस चीज को लेके, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है इस चीज को लेके कि as I just said before कि you are a luxury lifestyle influencer, Yes. right? What is the difference between an average regular content creator, influencer, and a luxury lifestyle influencer? The major difference is, of course, the kind of brands we're working with, and that's a privilege. I won't really say a privilege because we've worked for it. Also, the quality of content, also the audience. You might have an audience जिसको maybe Kia Seltos का budget है उसका. I might have an audience जिसका BMW X5 का ही budget है. So the audience also matters. Brand partnerships definitely matter, and how you position yourself, that really matters and stands out. So Okay. for example, there are so many influencers and content creators who are doing 10 campaigns a month. I don't do 10 campaigns a month. I don't want to. I want to do 3 campaigns a month. I will still make double the money what they're making, but I will make sure that I'm providing quality content to my audience. Also, I think एक और बहुत बड़ा difference ये है कि see, I don't sell luxury visuals. If I talk about my profile, I sell luxury mindset. I'll tell you how.
from the day I started working, I didn't ask anything from my dad. So उससे पहले मेरे पास जो भी bags थे, जो भी car मैं drive, whatsoever was that. Today, whatever I wear, the bags I carry and everything is as per my net worth, right? So what I sell on my gram is, because my audience is 16 to 35, but majorly dominated है 16 to 25, 30 के बीच में. So what I sell is the luxury mindset कि if I can have it, you can have it too. Work for it, you know. So that's how I position myself, and that's how I want to be, because that's my reality. Today my dad drives a luxury car. I might take it out for probably one night or a day, right? But I still drive the car that I know resonates with my monthly income, right? Because I really want to portray that कि this is who I am today, and I can afford this brand जो कि मैं 2 साल पहले ड्रीम करती थी. तो अगर 2 साल में मैं अचीव कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो. मेरा एक सेट टारगेट है, probably for next 5 years I want to buy a certain car. Probably 5 years down the line, then again I will try to influence people that way only. But वो लोग मेरी 5 साल की जर्नी भी तो देखेंगे. So that is where you make a difference. You can't do anything and everything on the gram. I see so many creators. Virality के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते. मतलब आप directionless हो यार. मतलब it's such a chaotic profile when you go to their profiles कि कुछ भी कर रहे हैं. कोई भी सीरीज just for money, पैसे के लिए कुछ भी हो रहा है. Attention के लिए, just to be more likable, which is nobody is liking you. I'm sorry. I think niche define करना बहुत जरूरी है. हाँ, मतलब इसमें भी 2 parts हैं. Like if you talk about myself, my profile, I am a luxury lifestyle. Now lifestyle में बहुत कुछ आ जाता है, which is normal also. Like if you have a life, तो आपकी life का एक aspect होगा जो बहुत dominate करता होगा. Now that can be fitness, right? बट आप करते हो सब. आप कार भी, ऑटोमोबाइल भी यूज कर ही रहे हो, आप ट्रैवल भी कर रहे हो, आप स्किन केयर भी एज अ मैन यूज कर रहे हो, बट फिटनेस आपकी लाइफ का मेजरली डोमिनेटिंग पार्ट है, बिकॉज यू लव दैट. सो ऑन माई प्रोफाइल, travel dominates my profile because I love to travel, right? So even though I am promoting lifestyle brands, because those are a part of my life, but majorly the audience, the kind of questions, queries that I get are from are about travel. Ki, 5 places to visit in Dubai, right. Vietnam mein ye kahan milega, and this and that. So my audience knows that she is pro at this. So let's ask her probably this. I don't do much of beauty on my page because I know I might be wrong somewhere. अब मुझे गलत information देनी ही नहीं है ना, because one follower, if she uses something that goes wrong for her, I just didn't lose her. वो 10 और लोगों को बोलेगी, because I have an image to maintain, right? So it is very important to have a niche within the lifestyle also. Right. आप एक दिन वे प्रोटीन के बारे में बात करके दूसरे दिन आप आयुर्वेदा पे नहीं जा सकते. आप एक दिन डर्मैट को प्रमोट करके चौथे दिन आप फेशियल योगा पे नहीं जा सकते, बिकॉज इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? दैट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट. मैंने कहीं पे पढ़ा था दैट नेवर सेल समथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, दैट यू डोंट रेजोनेट विद. यस, एग्जैक्टली. अगर इसको स्पष्ट भाषा में बोले तो जो लोग व्यापार करते हैं ना, वो भी ये बात बहुत ही क्लियरली बोलते हैं कि आप जब तक अपने माल को यानी अपने प्रोडक्ट को नहीं समझते, आप उसे बेचना शुरू मत करो. Yes. So here your product is a luxury lifestyle that you're trying to. My product is me. I am the product. You're understanding? That's what people don't understand. I am the product. If I sell myself really well, I can sell shit on the gram and people will buy it. I have to sell myself. That's where people go wrong. I am the product. आज क्योंकि मैं अगर आज लक्स बेच रही हूँ तो वो लक्स खरीदेंगे, बट हो सकता है कि मैं लक्स की जगह अगर प्रॉब्ली मामाअर्थ बेच रही होती, वो भी बाय करते. तो हु इज द प्रोडक्ट? हु इज द ड्राइविंग फोर्स? आई एम, राइट? सो you should know how to sell yourself. And how will you sell yourself? Ultimately, you'll sell yourself with authenticity,
being real. For example, there's a very weird thing that happened and I got really pissed. मैं वैसे अपनी Instagram पे नेगेटिविटी नहीं फैलाती हूँ, ना ही I have a very thick skin. Right. So I was in Dubai and I have a ritual. मैं जिस भी कंट्री में लैंड करती हूँ मैं पहले गुरुद्वारा या टेम्पल जाती हूँ. ठीक है. I have this thing. And if I go, and I'm a huge promoter of God. ठीक है. So I post about it. And when I post about it, मैं flow से बाहर हो जाती हूँ. Then I'll post and write and stuff. So this time, this girl, a friend of mine, work friend, she texted me that, babe, you have such an amazing profile, you know. Last night you were in a limousine ride in Dubai and a private yacht. You have such an aesthetic profile. Don't you think posting a lot about this, I mean, a lot भी नहीं था, वो एक दिन full of वो था, will ruin your aesthetics? Who are you to decide? It is, my profile is not a commercial profile. Influencer वो होते हैं जो अपने lifestyle से influence कर रहे हैं, right? So it is legit my life on a page. I will post whatever is happening in my life. So that's when I went ahead and said that I can't choose, right? Of course, I can filter it out, but I don't want to choose. I want to be really real. लोगों को ये दिख रहा है I'm probably doing all these activities. I'm going to the water park, this and that. But people should know that part of my life as well. You know? So that is how you sell yourself. When you don't try to sell yourself. When you try to be real. आज हमारे इंडिया में भी कितने यूट्यूबर्स हैं जिनसे लोग रिलेट करते हैं. लाइक अगर आप एक डेली सोप एक्टर भी देखोगे ना, जब वो किसी शहर में जाते हैं और एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं ना, व्हाट डू यू कॉल इट, चक्का जाम, वो नहीं होता है. बट इन यूट्यूबर्स के जाने पे होता है. व्हाई? बिकॉज दे आर रॉ एंड देसी एज हेल, यू नो. They have a strong fam. But Not why? fan base, like हाँ, fan base. How? Because अगर वो स्टील की प्लेट में खा रहे हैं ना, तो वो वही दिखा रहे हैं. वो डिनर सेट निकाल नहीं रहे हैं टू मेक इट लुक एस्थेटिक, राइट? डू यू थिंक कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो कि अपने आप को लग्जरी इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, राइट, लग्जरी लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, आर फेक? A part of them, yes. It's just, I won't call them fake. कि वो जो दिखा रहे हैं वो यार, एक्चुअल में वो लाइफ नहीं जी रहे हैं. वो सिर्फ पार्ट ऑफ देयर लाइफ है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आप एक शादी में जाते हो, आप महंगा सा लहंगा पहन के जाते हो और आप प्रॉब्ली वो 1000 रुपए वाला फाउंडेशन नहीं 3000 वाला लगा के जाते हो फॉर बेटर कवरेज एंड एवरीथिंग. दैट इज यू. बट घर आके आप ट्रैक सूट में ही होते हो ना. सो दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, not the entire life. You're not always dressed like that. But what we show, I mean the creators, is just the fancy part. That is something that I don't like, you know. How is your life? I really want to understand, क्योंकि अभी आपने एक जो बात बोली है ना, I think बहुत सारे creators उस लग्जरी लाइफ के लिए कंटेंट बनाना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी. उनको लगता है कि हम you know, we will become the top creator, and I'll say हाँ डेफिनेटली आप बनोगे. बट आप शुरू से ही अगर फेक करके वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, वो कितना सही और कितना गलत है? यार रेंट पे कार्स लेके हफ्ते के लिए, उसमें अगर आप मल्टीपल कंटेंट बना के डाल रहे हो, शोइंग दैट प्रोडक्ट एज योर्स, आप कब तक कर लोगे? दुनिया कैमरे के बाहर भी तो है. दे नो योर रियलिटी. दे विल इवेंचुअली नो. योर फैंस, चलो आप वायरल हो भी गए, जब आपका एक फैन आपको उसके बाद मे बी एनी अदर कार जो उससे प्रॉब्ली छोटे लेवल की है में देखेगा, तो फिर वो 3-4 बार देखेगा, फिर देन व्हाट? दैट इज व्हाई आई से ऑथेंटिसिटी सेल्स इटसेल्फ, यू नो. तो वो जो लग्जरी लाइफस्टाइल क्रिएटर्स कर रहे हैं या ट्राइंग टू पोजिशन समथिंग, इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव्ड लाइफ.
मुझे ऐसा लगता है कि आप, like I said, I come from a family wherein we have 2 luxury cars, but I don't drive them. One my brother drives, one my dad drives. I still go in a normal car because that is my daily routine. I might pull out that car for one event or function, but I don't want to show something that cannot sustain and last. Now that's just one materialistic aspect of life. Similarly about everything, यार मेरे बाल ग्रे हो गए हैं, मैं कलर कराती हूँ, बोलो ना अपने ऑडियंस को, और ऑडियंस को ये भी बताओ कि दो महीने तक दिस अंडर आई क्रीम वाज वर्किंग फॉर मी. स्ट्रेंजली नाउ इट्स नॉट, गाइस. इज इट हैपनिंग विद यू? सो आपका कहना है कि आई कम फ्रॉम लग्जरी, आई अंडरस्टैंड लग्जरी एंड दैट इज व्हाट सेल इट. आई डोंट सेल लग्जरी, आई सेल द माइंडसेट. You should aim to be there and work for it rather than being there. Everybody, I mean, people are born rich ना, हमारी generation की अगर हम बात करें, right? But the person who is actually rich, like if I talk about me, it's my dad's money. He has worked for it. Am I rich? No. If I want to be rich, what do I have to do? I have to have a mindset and then work for it. I can't be bragging about my dad's money or my chachu's car or my husband. तो चलो ठीक है, of course, that's a very this thing. By the way, I want a rich husband. But yeah, I mean, again, मतलब what do you call it? सारी बातों का सार वो है कि जो आपका लाइफ का पार्ट है ना, रोज उसको दिखाओ, लोग रिलेट करेंगे. I was watching this meme जिसमें ना उन्होंने बहुत weird, so it was like कि I thought I am the only one, उस meme का title था, जिसमें ना this guy was brushing his teeth and he keeps his hand on his waist. Honestly, I used to think that that's only me, कि मैं ही ये weird हूँ कि when I'm brushing my teeth, I sometimes keep my hand on my waist. There are so many people. I could resonate. It was relevant for me. Right. Even though उसमें वो कुछ बेच नहीं रहा था, but he still caught my attention. Right. Retention rate and hence the reach. Why? Because I could relate to it. तो अगर मैं सिर्फ हमेशा ग्लैमर ही दिखा रही हूँ, this and that, मैं ये दिखाई नहीं रही हूँ कि my hair also turn grey. I also go and get my global done, you know. I also look messy at times. My skin also has burnouts and whatnot, right? मैं भी irritate होती हूँ. मैं भी I also at times, you know, just to spend time with my mom, I also go and accompany her to grocery shopping, to a sabzi mandi. Luxury can be a part of your life. Even the actors, you know, if you talk about biggest comedy shows in India, when the biggest of actors come, what do they say? Our life is as normal as yours. As normal as yours, right? Right. That is why people have now in the era of social media. आप कभी इतना श्रीदेवी से या ऐश्वर्या राय से कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाए होगे ना, क्योंकि आप उनको डेली लाइफ में देख ही नहीं रहे थे. Today when I see Malaika Arora going to the gym, you know, on a certain channel, and her hair are not done, she's without makeup, and she also has like flaws and uneven skin tone, I could relate to her, right? That is what sells. अगर ऑथेंटिसिटी सेल नहीं हो रही होती तो ये जो पैप्स वाले पेजेस हैं ये सेल होते ही नहीं, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो योर डेली रूटीन. ये वही वाली बात है ना कि रोज बैठ के आली ओलियो या सुशी थोड़ी खा रहा है कोई, दाल रोटी खा रहे हैं यार, खिचड़ी खा रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं. Exactly. I really relate to Kareena Kapoor. She's like, khichdi is like my comfort food. You know, I eat parathas every morning. So now there's one neuron in my body that could relate to her. Right. Earlier मुझे लगता था she's all brands and bitchiness. रोज कोई एवोकाडो टोस्ट नहीं खा रहा भाई, सुबह पराठे भी चल रहे हैं और दलिया भी चल रहा है. या किसी दिन तो कॉफी पे सरवाइव कर रहे हैं गाइस, मतलब ऐसा भी होता है. So यार, I really want to understand कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ. जब हम उस गहराई में जा रहे हैं कन्वर्सेशन की, तो
ये आइडिया कहाँ से आया कि यार अब बस हो गया, कॉर्पोरेट लाइफ वगैरह हो गया, अब कंटेंट क्रिएटर बनना है, आई वांट टू डू दिस फॉर माई सेल्फ, और मुझे अच्छा लगता है ये करना, क्योंकि ना सबकी अपनी अलग अलग जर्नी है, राइट? एज आई ऑलवेज से वी आर ऑल मिसफिट्स, राइट? हम लोग निकले हैं कुछ अलग करने के लिए, राइट? तो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? ये शुरू कहाँ से हुआ का एक चीज़ है कि there's a very strange thing about me that people also tell me कि यार तू डरती नहीं है बोलने से। तो मेरा एक दोस्त है, वो मुझे ना, एंड ही इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल गाय, और वो मुझे हर बार एक ही चीज़ बोलता है कि यार मुझे लगता है कि तुझे मैं किसी भी इंसान के साथ बिठा दूँ ना, मतलब बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन भी, तो तू डरेगी नहीं। लाइक लोग नर्वस होते हैं, तू नर्वस नहीं होगी। एंड दैट इज ट्रू, बिकॉज फर्स्ट क्लास से मैं असेंबली कमांडर थी अपने स्कूल में। नाउ असेंबली कमांडर्स वो होते हैं जो असेंबली पे सारे शोज होते हैं उनको मॉडरेट करते हैं वो लोग, फर्स्ट क्लास से। सो जब से मैंने अपनी मेमोरी गेन की है, मैं स्टेज पे थी, यू नो। तो मेरा स्टेज फियर, मुझे डर तो है ही नहीं, राइट? सो ये वहां से शुरू हुआ कि मैं बहुत बोलती थी, एंड माई डैड वंस टोल्ड मी कि थोड़ा कम बोला कर। आई ट्राइड टू वर्क ऑन इट, नहीं हुआ। अब जब कोई चीज नहीं आप हेल्प कर सकते हो तो व्हाई नॉट टू मेक मनी आउट ऑफ इट ना, उससे पैसा ही कमा लो। सो दैट वाज द इंटेंट, एंड आई वाज ऑलवेज अ ब्राइट स्टूडेंट। आई मीन 12th में भी अच्छे मार्क्स लाई मैं, अच्छे कॉलेज में, अच्छी कट ऑफ के साथ एंड सब कुछ। साथ साथ मैं फैशन सोसाइटी में भी थी। आई गॉट सिलेक्टेड, BCL बॉक्स क्रिकेट लीग होता है एकता कपूर का, वहाँ से कुछ आ गया, बट ये मैं सब फन के लिए कर रही थी, एंड मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए थी। सो स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज मुझे बहुत ही अच्छे, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, मुझे वहाँ पर आई गॉट रिक्रूटेड, and it is one of the best companies in the world to work with, and सब सही चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, but हमेशा से, because I come from a business background, तो हमेशा से था कि कुछ तो अपना करना है और पापा के साथ नहीं करना है, you know। मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। नहीं, with all due respect to my dad, मेरा ये मानना है कि आप कितना भी उस बिजनेस को बढ़ा लो ना, तो जो वो पापा के साइड के रिश्तेदार होते हैं वो हमेशा एक ही चीज़ बोलेंगे, दुनिया भी, कि फादर का ही तो बिजनेस है, यू नो, विच इज़ फाइन। आई मीन आई हैव नो प्रॉब्लम कि मेरे डैड को हर बार क्रेडिट्स दिए जाएं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फ्रॉम स्क्रैच मुझे खुद का कुछ, यू वांट टू कॉल इट योर्स, कि ये बेबी था, ये मैंने बनाया है, यू नो। मैंने अडॉप्ट नहीं किया, आई हैव क्रिएटेड दिस बेबी बिजनेस टू एन एम्पायर, राइट? सो एंड देयर केम अ पॉइंट जहाँ पर मुझे लगता है मैंने आउटग्रो कर लिया था जितनी भी मेरी लर्निंग थी कॉर्पोरेट में। सब बढ़िया हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट व्हेन मैं ऑफिस भी जाती थी तो ऑफिस में भी आई वाज डूइंग EAT एक्टिविटीज व्हाइल वर्किंग। मैं इंटरनेशनल ब्यूरोज के साथ आई यूज्ड टू हैंडल FICO। इंडिया में सिबिल होता है, वहाँ FICO होता है US में। तो वी यूज्ड टू हैंडल ऑल द H&I क्लाइंट्स, ऑल सेलिब्रिटीज, उनके कार्ड्स एंड FICO। बट वहाँ पर भी साथ साथ आई वाज डूइंग शो टाइम। तो मुझे हमेशा स्टेज पे कैमरा के आगे रहना बहुत पसंद था, बिकॉज दैट इज मी। एंड एंड देन आई स्टिल रिमेंबर, दुनिया बोलती है कि यार बॉसेस ना बड़े अनोइंग होते हैं। मेरा बॉस, माई एक्स बॉस, he is, I mean, I respect him as much as I respect my father. Wow. Mr. Ayush Narula. I really want to take his name because, so he told me one day that you're doing great, but मुझे लगता है कि तू बहुत ज़्यादा के लिए बनी है। Okay. He saw my talent. क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ ना क्रिएटिविटी को किल कर देती है। Okay. Right. But what you're trying to say is that आपकी कॉर्पोरेट लाइफ ने ही आपको स्ट्रक्चर किया है मेरी क्रिएटिविटी को, चेंज लाने में मदद करी। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हो ना, तो आपको होता है ये भी कर देंगे, वो भी, अगली इलॉन मस्क तो मैं ही हूँ, यू नो।
फिर आप कॉर्पोरेट में जाते हो, फिर आपको पता चलता है बॉस सबके पास आइडियाज हैं, ठीक है, True. फिर आपके True. फिल्टर होते हैं आइडियाज. बट आई ऑलवेज से दिस कि क्रिएटिविटी विदाउट एनी डिसिप्लिन या स्ट्रक्चर ना, विजन इज अ chaos, है ना. तो आई थिंक कॉर्पोरेट आपकी क्रिएटिविटी को बहुत स्ट्रक्चर करता है, आपको डिसिप्लिन बनाता है. इट्स आई कॉल इट अ ट्रेनिंग ग्राउंड, यू नो. इट ट्रेन्स यू for your future playground, which is life ahead, maybe your startup or anything. Yeah, now you've moved forward, right? Yeah. आपने कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ के अपने लिए एक नई दुनिया बनाई है. Yeah. That's how I will Yeah. take it forward. बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं. आपके हिसाब से what is the difference between being stuck and being in a learning phase? Yeah, like knowing when to leave. Yeah. And मतलब if to leave or not. if to leave or not. But again, a lot of people, उनको ऐसा लगता है कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर फंस चुके हैं and they will never be able to come out of it. Okay. What is your say? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई चीज़ बहुत रेपिटेटिवली कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, इफ़ यू थिंक लाइक कि यार हर वो सेम काम कर रहा हूँ, कुछ लर्निंग ही नहीं है, यू नो, दैट इज व्हेन. और अगर आपको कॉर्पोरेट में ही सर्वाइव करना है, आपको है कि मेरे को और कुछ करना ही नहीं है, आपका कोई विजन ही नहीं है, तो लुक फॉर अनदर जॉब. दैट समथिंग शुड बी चैलेंजिंग ना. मतलब ह्यूमन पर्पस क्या है? We were speaking about this before the podcast also, that change is constant. आपका माइंड एक इतनी stagnant stage पे आ जाता है कि आप कुछ नया सीख ही नहीं रहे हो, तो ऑफ कोर्स लोग स्टक ही फील करेंगे. When getting exhausted, tired, but still having that feeling कि यार I am turning smarter day by day. Stay there, work for it. बट एक बार जब आपका मेंटल फिटीग आ जाता है कि अब कुछ है ही नहीं, और व्हेन यू हैव आउटग्रोन ऑल व्हाट यू डूइंग, यू आर प्रो एट इट, हो गया सब, RNRs भी ऑफिस में जीत लिए, अब डे बाय डे यू आर डूइंग द सेम थिंग, कुछ नहीं है. दैट्स व्हेन यू शुड एक्चुअली टेक सम टाइम ऑफ. आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, टू नो कि आप पूछो ना खुद से, इज दिस समथिंग दैट आई वॉन्ट टू डू the rest of my life. If I talk about myself, मुझे कॉर्पोरेट में 3 साल मैंने काम किया था और अभी मुझे 7 साल हो गए हैं. Every day when I'm tired, मैं खुद से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि बानी, this is what you want to do the rest of your life? And the answer is yes. So that yes should come, People ask me, यार तू थकती नहीं है, ये भी कर रही है, now you are a founder also, you're guest listing also, you're creating content, फिर तू फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रही है, and then you're doing so many things under the same umbrella. Aren't you tired? Of course I am, but I'm happily tired. I am satisfied, right? That is very important. And I'm learning. मैं हर रोज़ कुछ नया सीख रही हूँ, मैं नए लोगों से मिल रही हूँ. I'm learning about entrepreneurship. मैं brands के different strategies के बारे में learn कर रही हूँ. कई बार I'm fortunate enough कि मैं अलग अलग industry के लोगों से मिलती हूँ. I meet politicians. I learn about geopolitics, what's happening. I meet founders, AI experts. कुछ तो नया सीख रही हूँ and I'm enjoying it. बट जब आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है, आप इवॉल्व ही नहीं कर रहे हो, like nothing is pushing, sharpening your instinct, your mind, your skills, then of course it's time to leave. इरवानी, क्या लगता है तुम्हें कि एक इंसान को पहले खुद को बिल्ड करना चाहिए या अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं अभी देख रहा हूँ ना, 12th करने के बाद, even after college, they are getting into entrepreneurship, they are becoming content creators, but simultaneously वो अपने करियर को बिल्ड नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, वो अपनी स्किल्स को बिल्ड नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं. they have become viral and they quit college, they don't work anywhere. it's a good thing, आप अपना खुद का कुछ बिल्ड कर रहे हो, but आपके हिसाब से how important is it
to work under someone before you build something of your own. It is very important. कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगेन जैसे मैंने बोला कि आप ना बहुत डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में. जब आप स्ट्रेट फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज होते हो ना, बहुत नॉइज़ होता है, आइडियाज़ होते हैं बट बहुत नॉइज़ होती है. उस नॉइज़ को कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है. ह्यूमिलिएशन झेलना बहुत ज़रूरी है. नो मैटर आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, फेलियर्स देखना बहुत ज़रूरी है. ये फील करना बहुत ज़रूरी है कि मैं ही नहीं हूँ, बाकी सब भी उतने ही टैलेंटेड हैं, राइट. एंड आजकल तो कॉर्पोरेट दे हैव दिस वेरी गुड कल्चर कि देयर आर नो केबिन्स. बॉस भी वहीं बैठ रहा है, वीपी भी उसी बे में बैठ रहा है. दैट इज इक्वालिटी समझते हो आप, राइट. आप ये समझते हो कि आप एक फॉर्चुनेट फैमिली से आते हो, आपका ड्राइवर सुबह आपको लग्जरी कार में ड्रॉप कर रहा है, बट आप जाके किसी ऐसे इंसान को सर बोल रहे हो जो आज भी कैब से आ रहा है. तो वो जो घंटी बजती है ना दिमाग में, वो बहुत जरूरी है. इट क्लियर्स आउट सो मेनी थिंग्स. और ये ना ऐसे बोलने से बताया नहीं जाता, बट डेली बेसिस पे ना जब आप ये एक्सपीरियंस करते हो, तब आपके दिमाग में ये क्लैरिटी आती है कि ये मुझे करना है या नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल, अगेन आप फॉर्चुनेट एनफ हो कि आप उस फैमिली से आ रहे हो कि आपकी फैमिली यूरोप पे या वर्ल्ड टूर पे जा रही है. आप उस बंदे से छुट्टी मांगने जा रहे हो जिसका पासपोर्ट भी नहीं है, यू नो. एंड ये हुआ है मेरे साथ. तब जाके आपको रियलाइज होता है कि क्या ये अभी भी मुझे करना है, या ये मुझे रादर, या तो आप उससे हिट होके आप उस लेवल पे पहुंचना चाहोगे इन द कॉर्पोरेट ओनली, या फिर आप बोलोगे कि यार मुझे कुछ ऐसा करना है जहां मुझे ये परमिशंस नहीं लेनी पड़े. सो ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो आपको ना बहुत चेंज कर देते हैं, लेकिन वो आपको तभी आएगा जब आप इन सिचुएशंस में होगे. सो आई ऑलवेज टेल दिस टू पीपल कि कॉर्पोरेट डीएनए होना बहुत जरूरी है. यू शुड हैव दैट माइंडसेट. यू शुड बहुत सारी चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगेन आइडिया होना एंड ये समझ होना कि विल इट सेल. लाइक इन टुडेज वर्ल्ड, वॉट एवर आई एम डूइंग, when I pitch an idea to my clients, I don't just think that, oh, it's a pretty idea. मैं ये भी सोचती हूँ कि like, will it work? क्या ये numbers change करेगा for good, right? या फिर ये corporate आपको बहुत कुछ सिखाता है actually. How to survive on coffee for the entire day. How to hate somebody and still be like, oh my God, I love what you're wearing. You know, that corporate आपको वो सिखाता है. corporate आपको ये सिखाता है how to pretend that you're working for your next promotion while you're emotionally preparing yourself for the resignation. मेरा तो ये मानना है कि corporate prepares you to become a slave for yourself. For yourself. Working for yourself. मेरा personal perspective है यहाँ पे कि आपको वो इतना रगड़ देते हैं ना, that's the word. वो इतना ब्रश कर देते हैं आपको कि you learn how to be a slave for yourself, work for yourself. You learn to live for yourself. Right? क्योंकि आप इतना तब जाते हो ना, अंदर ही अंदर आपकी creativity कहीं ना कहीं, you know, it's spoiling. And you start feeling that this place is killing my creativity. And then you just boom, come out of it. That's and you start working for yourself. Yes. Because आपको पता है कि मैं यहाँ पे 18 घंटे कर रहा था, अगर मैं अपने लिए 16 घंटे करूंगा ना, तो it will make me something. पर क्या आप बिना कॉर्पोरेट के भी अपने लिए 16 घंटे करते, आप 12 घंटे ही करते और रादर 9 घंटे ही करते, क्योंकि आप उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करते. यार 9 to 6 करते हैं लोग, मैं भी 9 से 6 काम करूंगा, अगर आप सीधा निकल के कुछ करते इन मोस्ट ऑफ द केसेस. सो वो बोलते हैं ना, वो हीरे को निकलने के लिए उसका तपना बहुत जरूरी है, उसको तराशने के लिए, यू नो. सो यू हैव टू अंडरगो दैट प्रोसेस. वो आपको कॉर्पोरेट सिखाता है. और मैं ये सबको बोलती हूँ, ऑल द लिटिल गर्ल्स हु टेक्स्ट मी इन माय डीएम, कि करो स्टार्ट अपना कुछ, बट उससे पहले प्लीज गो एंड किसी के अंडर काम करो. बहुत कुछ सिखाता है, बिकॉज आप ना डैडीज लिटिल वर्ल्ड से आ रहे होते हो, राइट.
बाहर की दुनिया कैसी है वो आपको कॉर्पोरेट सिखाता है. हाउ टू डील विद अनोइंग पीपल द एंटायर डे, 5 days a week, वो आपको कॉर्पोरेट सिखाता है. सबसे अनोइंग कौन था आपके वर्क प्लेस में? क्योंकि ये मुझे बहुत पर्सनल ये नहीं, साउंड किया. एक्चुअली टच वुड, मेरे बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स हाँ. कॉर्पोरेट जर्नी से बट ये अनोइंग वाला कहाँ से आया? आई रियली वांट टू. एक्चुअली क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आज की डेट में भी, मैं उनके बॉसेस को बाय नेम जानती हूँ क्योंकि वो बहुत अनोइंग है, यू नो. सो जब हम मिलते हैं तो हमारी एक प्रॉपर ऐसे रैंट डेट फिक्स होती है कि यार आई रियली वांट टू रैंट अबाउट माय बॉस, प्लीज क्या मिल सकती है, मुझे बस बोलना है. Ranting dates, went out वाला zone होता है पूरा का with my female पूरा. friends, with my male friends. That is why my boss was, मतलब I was fortunate. So yeah, but I think बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. It shapes you as a person. आपको ना क्या, आपको बहुत कुछ चाहिए होता है जब आप कॉलेज से निकलते हो and you know, पर आपको क्या नहीं चाहिए वो आपको कॉर्पोरेट सिखाता है. ऐसे लोगों के साथ मुझे आज के बाद काम नहीं करना. मुझे मैं दुनिया में कोई भी जॉब ले लूंगी बट मैं ग्रेवयार्ड शिफ्ट नहीं लूंगी, या फीमेल बॉस के साथ तो मुझे आज के बाद काम नहीं करना, या प्रॉब्ली सेल्स इज नॉट माई थिंग. क्योंकि जब आप फ्रेश आउट ऑफ द कॉलेज निकलते हो तो यू जस्ट वॉन्ट टू अर्न मनी, राइट. बट वॉट इज समथिंग दैट आर योर नॉन नेगोशिएबल्स, वो आपको कॉर्पोरेट सिखाता है. और वो बहुत सप्रेशन के बाद वो इमोशंस जब निकलते हैं ना, कई बार यू ऑल्सो एक्सप्लोर अ न्यू आइडेंटिटी फॉर योर सेल्फ. I think you start channelizing your thoughts more, Yeah. and it is something like getting more into the growth mindset. What do you think? Some way, yes. है ना? Yes. मतलब, yeah. Growth can be in any aspect. In any but aspect, yes. Growth mindset. Yeah. यार, what is that one hard truth about career growth जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा? मुझे लगता है लोग बात करना ही नहीं चाहते. लोग, मुझे लगता है कि कहीं ना लोग सोच रहे हैं कि हम इसको अपने पास छुपा के रख लेते हैं, राइट. और हम ही सक्सेसफुल हो जाते हैं और इसके ऊपर सीक्रेट लिखेंगे. या बात कर भी रहे हैं तो फिर अगेन बहुत क्लीशे बात, चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि यू नो सैड पे मास्टर्स एंड अगेन अनोइंग बॉसेस, यही बात कर रहे हैं. बट फॉर मी आई फील लाइक ऐसे एक तो बहुत हार्ड ट्रूथ ये है कि ग्रोथ विल बी बोरिंग, इट विल बी लोनली, बट इट विल बी स्टेबल, राइट. ट्रू. So there will be times जब आप सब सही कर रहे होगे और फिर भी आपको लगेगा कि आप पीछे रह गए हो. Agree. Completely I'll tell you how. Because और वो फेलियर नहीं है एक्चुअली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ ना पहले बहुत साइलेंट होती है लाउड होने से पहले, राइट. अगर हम क्रिकेटर्स का एग्जांपल लें, कोई ये नहीं देखता ना कि कितने साल प्रैक्टिस की, सिर्फ वो एक मैन परफेक्ट हम हमेशा बोलते हैं, बट हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते. राइट. सो वो एक हार्ड ट्रूथ है, क्योंकि एक अ पर्सन हु इज सक्सेसफुल एंड अ पर्सन हु इज नॉट के बीच में एक ही डिफरेंस है कि ही गिव अप एंड ही डिडंट, राइट. तो बिकॉज जब आप कंफ्यूज्ड हो, जब आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, जब आपके एफर्ट्स बहुत इनविजिबल हैं खुद को ही, तो क्योंकि ग्रोथ इज वेरी अनसेलिब्रेटेड, नॉट सो सेलिब्रेटेड टिल द टाइम इट्स साइलेंट. जैसे ही लाउड होती है ना तो पीपल विल स्टार्ट क्लैपिंग फॉर यू, बट nobody claps ना जब आप घर पे बैठे हो, when you, and there will be times when you will be saying no to your friends, right. family trips को no बोलोगे. और उस टाइम पे एक और चीज है, इंस्टाग्राम पे आपको लगेगा everybody is winning in life, you know, तो आपको फोमो भी होगा, तो उस टाइम पे तो nobody claps for you. But then there comes a time, and इसी बीच में ना फिर आपको आइडेंटिटी क्राइसिस भी होंगे. ये मेरे साथ हुआ है कि यार इज इट रियली वर्थ इट कि सब घूमने गए, मैं नहीं जा रही, मतलब मेरी कोई लाइफ नहीं है, या एम आई डूइंग इट रॉन्ग, या इतना करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए. तो आपको वो आइडेंटिटी शिफ्ट्स भी होंगे, कई बार आप अपने ही वर्जन्स को आउटग्रो भी कर दोगे. बट फाइनली व्हेन इट हैपेंस ना, आई मीन वो देयर इज अ कोट दैट सेज ना कि व्हेन यू मीट द सोलमेट ऑफ योर लाइफ, you'll know that every rejection was worth it. It was for a reason. Similarly,
that one break that you'll get in life ना, आपको वो सब कुछ it'll start making sense. But till that time, that's the hard truth, that growth will be very boring, it will be silent, it will be very lonely. Nobody will understand that. आई completely agree with you. मैंने अभी 4-5 दिन पहले एक रील लाइव करी थी, randomly came out from a podcast that I did. I talked about doing the boring stuff, Yeah. right? सब लोग आपको बोलते हैं do what you love, do what Yeah, you love, do yeah. what you love. And once you start doing what you love, Yeah. that know. moment you are happy. Hmm. You start feeling content for a few Yeah. days. Yeah. And then all of a sudden you start getting bored because of what you're doing. Because that's your everyday routine. Yeah, exactly. Yeah. But कल तक तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी. Yeah. You used to like it, you used to love it, you used to enjoy it. Yeah. And it became boring for you because you are again trying to find perfection Yeah. in what you have started to do. Right? But वो boring ही आपको successful बनाता है. अगर आप लड़ रहे हो रोज, आप लगे हुए हो constantly, Yeah. discipline, And not giving up. consistency. You just keep doing what you're doing every day, even if it gets boring. But जब वो result निकल के आएगा ना, outcome निकल के आएगा उस चीज का, उस दिन आपको उस चीज में और ज्यादा मजा आने लग जाएगा उसको करने में, क्योंकि हम लोग ना रिजल्ट का वेट नहीं करते and we give up. Yeah. True. That's the human nature. हम लोग लड़ना छोड़ देते हैं. True. यार थक गया यार मैं, यार, Yeah. नहीं हो रहा मुझसे Yeah. यार, बोरिंग हो गया यार बहुत ज्यादा, रोज रोज कंटेंट बनाना यार, 4 घंटे रिकॉर्ड करने में लगते हैं, 5 घंटे एडिट करने में लगते हैं, एंड व्हाट इज द आउटकम? नथिंग. Yeah. Let me leave it, let me go back to what I was doing. I still love it, Yeah. but Let me try something new. let me try something new, क्योंकि अभी बोरिंग हो गया है. बोरिंग ही आपको बड़ा बनाएगा. चलो तुम बताओ, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, Yeah. राइट? हाउ बोरिंग इज इट एट टाइम्स? नहीं, बोरिंग हमारे काम में ना कुछ बोरिंग हो नहीं सकता, बिकॉज एवरी डे एवरी क्लाइंट इज वेरी न्यू. But it's not only about the content that can be boring. There is a possibility कि वो process आपको boring लगने लगा हो थोड़ा सा. Not really. I think I genuinely love what I do. You thoroughly enjoy what you're doing. I love it. I wouldn't have wanted it any other way. But what if growth 6 महीने के लिए बिल्कुल dead हो जाए? Then Actually, if you look at it the other way, कई बार growth उस तरीके से बहुत monotonous हो जाती है कि यार followers ही नहीं बढ़ रहे हैं, ये पहुंच ही नहीं रहा है. तो the process is not boring at times, but the weight that you have and the expectation of now moving on to the next level. milestones. Yeah. So that, उसको भी हम boring नहीं बोलेंगे, that gets exhausting at times. You know, frustrated हो जाते हो आप कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, एंड कोई एयरपोर्ट पे बाथरोब पहन के पहुंच गया, उसके बढ़ गए, और मैं इतना इंफॉर्मेटिव कंटेंट दे रही हूँ यहाँ पे और बढ़ ही नहीं रहे हैं. तो वो कहीं ना कहीं वो बहुत अनोइंग हो जाता है एट टाइम्स, बट देन बोरिंग नहीं है. एवरी डे इज अ न्यू डे. एवरी रील, एवरी कंटेंट पीस दैट आई मेक, I enjoy it a lot. बट एक ब्रेकिंग पॉइंट तो आता है कहीं ना कहीं वो जर्नी में, जहाँ पे आपको लगता है कि हम कहते हैं ना कि एक नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी फील होनी स्टार्ट हो जाती है कि यार व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग, क्यों नहीं हो रहा, स्टैग्नेट हो जाता है, राइट? तो वो फॉलोअरशिप के एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि ये जो स्टैग्नेंट फेज है, हाँ, अगर आपने यहाँ पे हार मान ली, हाँ, अगर आप यहाँ रुक गए, हाँ, तो आपने कंसिस्टेंसी तोड़ दी, या बिल्कुल, आपने वो डिसिप्लिन तोड़ दिया, आपने वो खुद से किया हुआ वादा तोड़ दिया. आई से कि मुझे तो ये करना था ना यार, मैं तो सब कुछ छोड़ के इसलिए आया था ना क्योंकि मुझे ये करना है. और अगर 4 दिन मुझे ग्रोथ नहीं दिखी, प्लेटू आ गया, तो मैंने क्या सोचना स्टार्ट कर दिया? दैट मीन्स दैट अभी भी आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है. ऑफ कोर्स, बिल्कुल.
Yes. क्योंकि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है ना That जिंदगी means you're में. not still fully convinced with what you're doing. Right. Right? That was the whole point of the boring वाला conversation. Yeah. कि यार आएगा, हाँ. आप जब निकले हो ना लड़ने के लिए, तो वो फेज आएगा लाइफ में. हाँ. सबके आता है. बिल्कुल. एंड एक चीज और मुझे फील होती है कि हार्ड ट्रूथ, चाहे लाइफ का बोल लो, चाहे ग्रोथ का बोल लो, चाहे किसी भी प्रोफेशन का बोल लो, कि इट्स नॉट द टैलेंट दैट मैटर्स. Okay. वो बहुत लेटर, आई वोंट से लेटर, बट दैट्स जस्ट वन पार्ट. कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन. अगर आप एक चीज हर रोज कर रहे हो, दैट कैन बी क्रिएटिंग कंटेंट. अगर आप कंसिस्टेंट हो ना, आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स. एक बंदा टैलेंट है बट वो कंसिस्टेंटली नहीं कर रहा है. द अदर वन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, कई बार मैं क्रिप करती हूँ कि यार मेरे तो फॉलोअरशिप बढ़ ही नहीं रही है. मैं तो ज्यादा अच्छा और ज्यादा इंफॉर्मेटिव और ज्यादा हैक्स प्रोवाइड कर रही हूँ, बट मैं शायद 3 days a week पोस्ट कर रही हूँ. बट दैट गर्ल जो इंस्टाग्राम पे वही नॉलेज दे रही है जो सबको पता है, बट वो हर रोज पोस्ट कर रही है. I That think is the difference. one more thing that comes in, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, believe. Yeah. Believe in Yes. what you are Oh doing. my God, yes. क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली भी कर रहे हो, डिसिप्लिन के साथ भी कर रहे हो, और आपको अपने ही काम पे विश्वास नहीं है, या तो वो दिखेगा. एक तो आपके काम में दिखेगा, तो वो आपके काम में दिखेगा. दूसरा, आप कितना भी अच्छा कर रहे थे, आपकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी, क्योंकि आपका खुद का विश्वास खत्म हो गया ना. Yeah. Now you're doing something just to make sure that it's done. Yeah. For the sake of doing it. Yes. मैंने पानी तो भरा, बट आधा गिरा दिया, आधा भरा. हाँ. राइट. मैंने फिर भी उसको पूरा भर लिया, बट मैंने आधा स्पिल कर दिया क्योंकि मेरा दिल वहां नहीं था. True. I think believing in your work is also very Is important. very, very important. और नामुमकिन कुछ भी नहीं है. चाय बेचने वाले ने भी बड़ी बड़ी दुकानें खोल ली. राइट. This is such a great example of Dolly Chai Wala, the guy who became an influencer from selling chai. I thought you were talking about Mr. Modi. Yeah, that's right. Yeah. Let's not talk things. Let's not go into politics, right? But there are examples of course. जिन्होंने consistently discipline के साथ और अपने काम पे विश्वास रख के किया है. बिल्कुल. And they have made it big. They have made Carrie it big. Benati, Bhuvan Bam, हर्ष गुजराल. Yeah. उन्होंने नहीं सोचा. They believed in themselves. बट ध्रुव, ये तो फिर भी कुछ चोजन करियर्स हैं जिनके बारे में लोगों को पता है. आई रिसेंटली मेट दिस लेडी कॉल्ड डॉली जैन. शी इज अ साड़ी टाइंग एक्सपर्ट, जो मिसेस नीता अंबानी, ईशा अंबानी, प्रियंका चोपड़ा सबको साड़ी टाई करती हैं. एंड शी चार्जेस 2.53 lakhs per one साड़ी ड्रेपिंग. राइट. सो आई वॉज सो इंस्पायर्ड कि लोग, अगर आप किसी चीज में अच्छे हो ना, आप किसी भी चीज से करियर बना सकते हो. हाँ, I completely agree with you. I did a podcast with this guy. His name is, I think, Rohit Bose. He is into tying dhotis. Oh wow. वो धोती पहन के कंटेंट बनाते हैं. I follow him. Right. I follow him on the gram. मैं मिली हूँ उनसे एक इवेंट में. He's such a nice guy. Yes. And धोती बांधते बांधते उन्होंने वो उनका एक तरीके से वो प्रोफेशन बन गया. He's going to places and tying dhotis and he's getting paid for it. हाँ, and वो किसी भी चीज से धोती टाई कर देते हैं, from his mother's साड़ी to. Exactly. I've seen that. Yes. Moving forward, corporate world से बहते बहते कंटेंट क्रिएशन में कहाँ से पहुंच गए? मतलब वो टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी लाइफ का पर्सनली, जब आपने डिसाइड किया कि भाई यहाँ मेरा हो गया? मैं उसको इस तरीके से भी ले सकता हूँ कि हाँ, मेरी लर्निंग हो गई है. आई हैव लर्नड अ लॉट, बिकॉज एज यू सेड कि आपका बहुत अच्छा टाइम कट रहा था वहाँ पे. राइट. व्हाई कंटेंट क्रिएशन? थोड़ी खुशी से बोलो यार. व्हाई कंटेंट क्रिएशन? व्हाई मतलब आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई. क्योंकि मुझे ना इम्पैक्ट लाना था आउट ऑफ द बोर्डरूम ऑल्सो. मतलब बहुत बोर्डरूम में आपने बहुत इम्पैक्ट ला लिया एंड आपने सब कुछ कर लिया, बट मेरी हमेशा से खुद की आवाज़ रही है. एंड ये बात सच है कि कॉर्पोरेट में आप
खुल के नहीं बोल सकते, और मेरी वो पर्सनालिटी है कि मैं बहुत खुल के जीने वाली बंदी हूँ, मैं बहुत खुल के बोलने वाली इंसान हूँ। तो मुझे ना जहाँ मेरी आवाज़ मैं ये नहीं बोलूँगी कि दबा दी गई, बट एक एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप आप आ रहे हो, आप काम कर रहे हो, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू इन्फ्लुएंस पीपल। मैं चाहती थी कि मैं बहुत ही टफ कॉन्वर्जेशंस भी करूं, मैं लोगों को इंस्पायर करूं, मैं लोगों से बातें करूं, और कॉर्पोरेट आपको बातें करने के पैसे तो नहीं देता है, यू नो। So are you the person, are you the kind of person who likes changing molds because you've grown and you want to change the mold? You want to switch to a new mold and grow more, and then move to another mold and grow more. Yes, that is not sounding right in many aspects, but yes, yeah, हाँ, मुझे ऐसा लगता है जहाँ आपका वक्त खत्म हो गया, आपको वक्त पे ही वहां से निकल के कहीं और जाके कुछ और नया सीखना चाहिए। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स। As you said, we were speaking about it, that somebody told you कि knowledge is God, शिक्षा ही भगवान है, right? कहीं ना कहीं on some levels मुझे ये बहुत true लगता है। एंड आप बहुत कुछ डिस्कवर करते हो जब आप आगे बढ़ के कुछ नया सीखते हो। But आपके हिसाब से what is your take on education, especially when it comes to people who are getting into content creation? Education and content creation मतलब? What is the role of education when there's a lot of people जो कि content creation में घुसना चाहते हैं? What is the role of education here? बहुत सारे लोग बोलते हैं कंटेंट बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्चुअली आपका क्या मानना है? मुझे ऐसा लगता है कि किसी हद तक ज़रूरी है, बट वो कंटेंट के लिए नहीं है। वो देयर आर वेरी डिफरेंट वेज टू लुक एट इट। अगर आपको इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाना है तो ऑफ कोर्स आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज, एंड यू शुड बी वेल वर्स्ड एंड वेल एजुकेटेड अबाउट दैट टॉपिक, राइट? उस चीज़ के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाना है। अच्छा। बट कंटेंट बहुत अलग अलग तरीके का हो सकता है, राइट? अगर आपको सिंपल कंटेंट बनाना है, व्लॉगिंग करनी है या अदर एरियाज, अगर आपका कंटेंट इंफॉर्मेटिव नहीं है, अगर आप फैशन एंथुजियास्ट हो, तो मुझे नहीं लगता, बिकॉज मुझे लगता है एजुकेशन ना एज अ पर्सन आपको शेप करने के लिए होता है, मोर देन किसी, स्पेशली अगर कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो उसमें इतना रोल मुझे नहीं दिखता अगर आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट नहीं बना रहे हो, you know, because it is shaping you as a person। वो तो सबके लिए जरूरी है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कंटेंट क्रिएटर्स who don't work on their education, right, on a day-to-day basis, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट भी किया जाता है? Educating yourself हाँ, on regular basis, but about what? About what you're doing, about other things that are related to what you're doing. हाँ, that is of course that's mandatory, but basic education की अगर हम बात करते हैं कि जो स्कूल की पढ़ाई लिखाई डिग्री होना जरूरी है, वो मैं नहीं मानती। हाँ, मैं एजुकेशन एज इन बोल रहा था अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, एज यू सेड you should be well versed about। मेरे कॉर्पोरेट की लर्निंग्स मेरे कंटेंट क्रिएशन के अंदर बहुत काम आ रही हैं, राइट? इन दैट पर्सपेक्टिव आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड द कोर एसेंस, the importance of educating yourself in the industry, about the industry, about what you're doing time, na? But अगर एक इंसान अपनी learnings को ना enhance करे, ना build करे, तो किसी भी इंडस्ट्री में कैसे अगेन ग्रो ही नहीं कर रहे हो ना आप, फिर वहाँ you will feel stagnant। वो तो किसी भी इंडस्ट्री में होगा। आपको अपने environment, जिस इंडस्ट्री में आप हो, जिस फ्रेटर्निटी में आप हो, उसके बारे में सीखना जानना तो बहुत ज़रूरी है ना। मतलब आजकल तो लेबर एसोसिएशन भी है ना, उनको भी अपने लॉस पता है। तो आप जो चीज़ कर रहे हो उसके बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है ही है। वो तो दैट इज़ वेरी अनसेड कि वो होना ही चाहिए। और एंड अगर आप किसी चीज़ में हो तो आप करोगे भी, यू नो। पर if I talk about basic education, that is, I think, if you want to create something related to that, बहुत important है, else I don't see a point. One of my very famous, one of my very favorite celebrities, he's not educated.
नहीं पढ़ाई लिखाई उन्होंने ज़्यादा की है, बहुत बड़े सिंगर हैं इंडिया के, दिल जीता है उन्होंने उनके। जब मैं उनके पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज़ देखती हूँ तो दिल खुश हो जाता है कि यार, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ एक्सपीरियंसेस बेटर एजुकेटर है, यू नो, और वो आपको मिलते रहेंगे। तो आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि एजुकेशन ज़रूरी नहीं है कंटेंट क्रिएशन में, बट मैं बोल रही हूँ दैट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर पढ़ाई लिखाई नहीं की है, देर आर सो मेनी वुमेन आउट देयर जिन्होंने, जो शायद सिर्फ 10th पास है या 8th पास है, एंड वो घर पे उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया कुकिंग का, और आज मास्टर शेफ में एज अ सेलिब्रिटी यू नो कंटेंट क्रिएटर आई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पैशन बहुत ज़रूरी है, अपने जो भी कर रहे हो उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, पर बेसिक एजुकेशन शुड बी देयर, बट इफ इट्स नॉट, यस दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लर्निंग और एजुकेटिंग से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही क्लियर था कि अगर आप कुछ कर रहे हो और उसमें भी आप अपने आप को एनहांस नहीं कर रहे, एडुकेट नहीं कर रहे, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर कंटेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर product, even if you are a product, right, of course, working on yourself is also education, right? It is also upskilling your content, your skill, yourself. सिंपल सी चीज है ना कि अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं, आप बेचोगे कैसे? अब वो आपका कंटेंट हो सकता है, वो कोई ब्रांड डील हो सकती है, वो आप खुद हो सकते हो। जब आपको खुद के बारे में ही नहीं पता, आप खुद पे ही नहीं काम कर रहे हो, तो और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, देन आपको दिखेगा उनके कंटेंट में कि कुछ भी किए जा रहे हैं यार, कुछ भी कर रहे हैं, ओ माय गॉड, यू नो। एंड देन आई फील रियली सैड फॉर दोज पीपल। मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि इस बेचारे को पता ही नहीं इसका कितना मजाक उड़ रहा है। बट बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एस्पायरिंग क्रिएटर्स, before they enter into influencer marketing or influencing people and content creation, क्या गलत हो सकता है जिसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए? Again, I will come back to the same point. Be real is very important. Don't chase virality. Directionless मत भागो कि आज इसने ये कर दिया तो अब मैं भी। ट्रेंड फॉलो करो, that is fine. But stick to your niche. अंडरस्टैंड योर नीश, और आपकी नीश भी वही होनी चाहिए जो आप पर्सनली पसंद करते हो। अगर आपको फिटनेस पसंद है तभी उसको एज अ नीश बना के डालो। खाते आप जंक हो लेकिन आप फिटनेस प्रमोट कर रहे हो, वो दिखता है आपके कंटेंट पे, आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे, आपकी प्रोफाइल पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नीश। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट चेज विरालिटी, यू नो। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप रेलिवेंट रहो, अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करो। आई विल से समथिंग, आई डोंट नो, विवाद होना तो नहीं चाहिए, बट आपको ना अपनी ऑडियंस के सबकॉन्शियस से खेलना है बस, और आपको अपने क्लाइंट के भी सबकॉन्शियस से खेलना है। अब आप उसको खेलना बोल लो या उसको समझना बोल लो। इज दैट द USP दैट यू हैव when I say कि luxury travel और fashion की जो niche है, it's too crowded, right? But you're still attracting brands like BMW, Apple, Amazon, Marriott. Is it the approach that you've been using, or that's the strategy? That's the strategy. कि I know what my audience wants और उनके subconscious में क्या चल रहा है, और मैं उनको वो कैसे दे सकती हूँ। Right. Of course, that's the strategy. You have to work on that. आप numbers पे मत भागो, आप strategy, और and this is all about 2026. Trust me. अगर कोई मुझसे पूछे कि 2026 में कोई एज एन इन्फ्लुएंसर अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, तो मैं बोलूँगी कि ट्रेंड के पीछे मत भागो, स्ट्रैटेजी के पीछे भागो। यू नो, बिल्ड योर स्ट्रैटेजी। माइन कैन बी वेरी डिफरेंट, आपकी बहुत डिफरेंट हो सकती है। जैसे मेरी डिफरेंट है इन अ वे कि मेरी प्रोफाइल पे अपना मजाक उड़ाना बिकता है। इट सेल्स ऑन माई प्रोफाइल। I want to get it with an example, please. For example, I'm 31 and still unmarried. I joke about it.
before anybody else does. You know, I look a certain way. I mean, you know, for people who doesn't know me, they always say कि वो बोलते हैं ये ना बहुत बैडी वाइब देती है, तो मैं उसके बारे में मजाक बनाती हूँ. I joke about my exes. वो मेरी प्रोफाइल पे बिकता है. Girls relate to it, right? For example, that you know, no, I'm not Rihanna. I don't love the way you lie. I will block you. It sells on my profile, but that's my strategy. ना, अब strategy simple भी हो सकती है कि आप कुछ quote से sell कर रहे हो, but reach आ रही है ना. But वो you have to understand कि आपकी profile पे क्या बिक रहा है. But is that real? That is real. That is real. Everything that रियल होना और स्ट्रैटेजी होना दोनों के साथ चीजें real होना जरूरी हैं. हाँ. अब एक पार्ट ऑफ मी ऑल्सो क्राइज ना रात को कभी कभार रूम में, बट वो नहीं बिकता. मैं रो के देख लिया मैंने, ग्राम पे नहीं बिक रहा वो. भाई क्या क्रेजी थॉट प्रोसेस है. मतलब बात सुन के मजा आ गया मेरे को. आप फेक हो. हाँ. आपके पास स्ट्रैटेजी है. हाँ. तो वो आपकी खुद की स्ट्रैटेजी नहीं है, वो किसी और की हो सकती है. ऑफ कोर्स. बट अगर आप रियल हो और स्ट्रैटेजी के साथ हो, हाँ, तो क्या मैजिकल चीज नहीं है ये? क्योंकि वो आपकी रियलिटी में से ही तो स्ट्रैटेजी निकली है. मुझे भी समझ में नहीं आया मैंने क्या बोल दिया, बट मतलब यू हैव टू बी रियल एंड यू हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी. या साइमल्टेनियसली दोनों चीजें होंगी तो यू आर डेफिनेटली गोइंग वायरल. या इफ यू ट्राई टू कॉपी समवन एल्स, इट्स नॉट योर रियल आइडेंटिटी एंड स्टिल यू हैव अ स्ट्रैटेजी, देन इट माइट नॉट वर्क. माइट नॉट वर्क. लक है तो चल गया. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. बहुत वियर्ड एग्जाम्पल है. आप शेफ हो और आपका बहुत इंपॉर्टेंट कोई क्लाइंट आ रहा है, ठीक है, या फिर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, आपका क्लाइंट आ रहा है. अब आपको पता है कि वो एक सर्टेन टाइप का लाइट फूड ही खाता है, या वो अनियन एंड गार्लिक नहीं कंज्यूम करते, राइट? अब आप बनाते पंजाबी फूड भी अच्छा हो, नॉर्थ इंडियन, राइट, आप मैक्सिकन भी बहुत अच्छा बनाते हो, और आप साउथ इंडियन भी बहुत अच्छा बनाते हो. आप बेस्ट बनाते हो नॉर्थ इंडियन, बट अब वो लाइट खाना खाता है और उसमें भी उसको अनियन एंड गार्लिक नहीं चाहिए. अब आपको पता है यार मेरा बेस्ट फूड बनता है पंजाबी, लेकिन वो बिना अनियन और गार्लिक के तो अच्छा नहीं बनेगा. सो आपने क्या किया? आपने बेस्ट ऑप्शन को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल्टर आउट किया. राइट. आपने सोचा मैक्सिकन में तो यार द मेन इंग्रेडिएंट इज अनियन, राइट? अब आप वो भी नहीं कर सकते. आपने लीस्ट फेवरेट ऑप्शन लिया, दो वो भी आप अच्छा बनाते हो, पर आपने कहा यार साउथ इंडियन लाइट भी होता है, बिना प्याज लहसुन के भी बन जाएगा, ये करते हैं. उसने खाया, उसको बहुत बढ़िया लगा, एंड ही वाज सो हैप्पी, ही गेव यू द डील. वाओ. All three were your realities, right? And it was your own strategy too. Exactly. So you pulled out your strategy from your reality. But जरूरी नहीं है कि जिस चीज में आप बेस्ट हो, आपको अपने बेस्ट के बेस्ट में से भी तो निकालना पड़ेगा. अब फॉर एग्जाम्पल, मैं इफ आई टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, में वो मेरा अटमोस्ट फेवरेट टॉपिक है. बट देन आई सॉ कि मेरी जो ऑडियंस है वो 16 to 30 की मैक्सिमम मेजॉरिटी में ऑडियंस है. अगर मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज्यादा बात करूँ, वो नहीं बिकेगा मेरी प्रोफाइल पे. That does not mean as compared to you know, making fun of my exes, yeah, my life, but that is also me. That's I part of have me. different versions of me, right? तो I chose something which is me, but जिससे मेरी ऑडियंस भी रिलेट कर रही है. वो एक saying है ना कि every person has a lot of characters. Yeah. Right. You cannot be the same person in front of your parents and your friends. Exactly. So होते हैं सबके 2 नहीं 3 नहीं 4-5 फेसेस भी होते हैं, साइड्स होती हैं. एंड आप करो उसको पोस्ट, बट मेजॉरिटी क्या रखोगे वो आपके ऊपर है. आई थिंक ये सब पर्सनालिटीज हैं, और कब किस समय किस तरीके का कंटेंट जाना चाहिए वो आपके मूड और आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप रियल हो. तो सोच के नहीं होता यार ज्यादा. हाँ, वही तो रियलिस्टिक अप्रोच तो वही है ना कि इफ आई एम नॉट इन अ गुड मूड, आई माइट पोस्ट समथिंग जहाँ पे मैं रैंट कर रही हूँ या वेंट आउट कर रही हूँ. Exactly, I do that. I am in a spiritual mood. I am posting something where I am in a temple or a gurdwara or a place that I believe in, right?
और उसमें भी कई लोग होंगे जिन्हें नहीं पसंद, तो अपनी Starting में आंखें आपने बंद बोला करो था। और अनफॉलो कर दो मुझे, Right. या म्यूट कर दो, देयर इज एन ऑप्शन, राइट? Hmm. बट एंड यूर राइट, मतलब कई दिनों में आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड. द अदर डे ओनली आई वाज एट अ पेट्रोल पंप, आई वाज गेटिंग माय कार रिफ्यूल्ड, एंड मैं एक सर्टेन टाइप का ड्रेस पहना हुआ था मैंने, एंड सामने एक आंटी, शी वाज, वो हेड टू टो उन्होंने मुझे बहुत जज किया, एंड देन शी स्टार्टेड लाफिंग, एंड शी कुछ बोलने लग गई अपनी साथ वाली उनको दूसरी कार से. Hmm. एंड उस दिन सुबह मॉर्निंग में भी कुछ हुआ, तो मेरा मूड खराब था, तो आई केम ऑन माई स्टोरीज एंड मैंने पूरी स्टोरी नरेट की, Hmm. ऑफ पेट्रोल पंप एंड एवरीथिंग. दैट्स हाउ आई कीप माई सेल्फ रियल. मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी कई बार हाथ से ही दाल चावल खाती हूँ क्योंकि मेरा मन है. मैं भी कई बार जाती हूँ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए सब्जी मंडी. सही बात. मैं भी, आई ऑल्सो लुक लाइक अ मेस व्हेन एट होम, एंड या मतलब मेरे भी कई बार स्पोर्ट शूज में होल हो जाता है और फिर भी मैं जिम पहन के जाती हूँ. आई एम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बट देन आई ऑल्सो कैरी Chanel. मैं YSL भी कैरी कर रही हूँ, बट मैं थाईलैंड की इंदिरा मार्केट से भी लाई हुई जीन्स पहन रही हूँ. दैट इज मी. लग्जरी कैन बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. It's all किसी ने मुझे बोला था, it's all about luxury at times is all about building your wardrobe, right? Yeah. It takes time. Yeah. And आप धीरे धीरे उस ट्रांजिशन हाँ, के थ्रू हाँ. निकलते हो, Yeah. राइट? Yeah, but हर चीज तो नहीं लग्जरी हो सकती हर ना. चीज नहीं हो सकती. बट क्या आपको लगता है कि कंटेंट क्रिएशन शुड बी ट्रीटेड लाइक अ सीरियस करियर? Oh hell yes. Yeah. Oh, there's a but Yeah. to it. You should always have a backup plan. If treated like a business, then why not? Hmm. मतलब मैं ओके, मैं इस तरीके से पुट अप करूंगी. अगर आप इसको सीरियसली फुल फ्लेजेडली Hmm. बिजनेस की तरह ट्रीट करते हो तो ये फुल फ्लेजेड बिजनेस है, करियर ऑप्शन है, और अगर आपको एक्सपैंड भी करना है तो आप सेम अम्ब्रेला के अंडर करो ना. जैसे कि आप कंटेंट क्रिएटर भी हो, आप ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट भी हो, आप गेस्ट लिस्टर भी हो, आप पॉडकास्टर भी हो, आप सब कुछ सेम अम्ब्रेला के अंदर कर रहे हो. बट डेफिनेटली यू कैन, आई एम अ लाइव एग्जाम्पल जिसने एक फुल फ्लेजेड जॉब छोड़ी है, अच्छी पे वाली जॉब छोड़ के. अगर मैं इस इंडस्ट्री में हूँ एंड टचवुड आई एम सर्वाइविंग से ज़्यादा ही कर रही हूँ, बेटर, टचवुड, you can definitely treat it as a full time job, and ये आपको 5 साल में वहाँ पहुँचा सकता है जो आप कॉर्पोरेट में 10 साल में पहुँचोगे. When Do it you comes to have a backup figures, plan? I do have a backup plan in the same industry, same umbrella, और वो मैं शुरू कर चुकी हूँ, which is my PR company. बट कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि हो सकता है ये ना चले फ्यूचर में, एंड नहीं, देन बिल्कुल नहीं. यू हैव अ बैकअप प्लान? बिकॉज मेरे को जितना समझ में आ रहा है, यू कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड एंड यू डीलिंग विद फाइनेंसेस एंड फाइनेंशियल रिलेटेड स्टफ, राइट? क्रेडिट स्कोर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड आई पर्सनली फील कि आपको फाइनेंस वाला चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती होंगी और बहुत लोगों को नहीं आती. तो मेरा ये मानना है कि जो इंसान फाइनेंसेस को समझ सकता है उसके लिए काफी सारी चीजें आसान हो जाती हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बिजनेस. बट जो इंसान फाइनेंशियल सिचुएशंस को सही तरीके से ना हैंडल कर पाए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, राइट? यू आर नॉट इन्वेस्टिंग द मनी इन द राइट डायरेक्शन, द राइट वे, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, इन योर वर्क एंड अदरवाइज. किस तरीके का ब्लंडर हो सकता है उस इंसान की लाइफ में, स्पेशली इस इंडस्ट्री में रहते हुए? ओके, मैंने किसी और के बारे में ऑनेस्टली इतना सोचा नहीं, बिकॉज मैं हमेशा ही फोकस करती रही एंड आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड अच्छी चीज़ें हुई. बट आई थिंक ब्लंडर तो यही हो सकता है ना कि नहीं चला, बट देन कब तक नहीं चलेगा? पर्सन डज नॉट हैव अ बैकअप प्लान, लाइक आपने तो एक सोच लिया. बिल्कुल यू शुड हैव अ बैकअप प्लान. मैं आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मेरा बैकअप प्लान इसी इंडस्ट्री में इसलिए क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आई विल नॉट फेल. आई एम वर्किंग रियली हार्ड फॉर इट. आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ in the same industry.
मैंने खुद से वैलिडेशन ली है, मुझे पता है कि व्हाट आई एम डूइंग इज राइट, मुझे पता है कि मैं इससे फुल फ्लेजेड करियर बना सकती हूँ और मैंने बनाया है। तो दैट्स व्हाट आई सेड कि मैंने हमेशा अपने बारे में ही सोचा, मैंने सोचा ही नहीं कुछ और। पर योर क्वेश्चन इज कि क्या बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। यू शुड बी गुड एट इट, राइट, बट एंड व्हेन आई से गुड एट इट मतलब कंसिस्टेंट होने बट चाहिए। बैकअप प्लान होना भी जरूरी है, वो तो हर चीज के लिए क्योंकि होना हर किसी जरूरी के है। अमीर बाप बाप या अमीर वाइफ या रिच हस्बैंड तो नहीं हो सकता, बिल्कुल है ना? नहीं, बट बैकअप प्लान तो हर चीज के लिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना होना चाहिए। चाहिए। मैं तो हमेशा मतलब मानता that हूँ ए goes और for बी तो रख के everything। चलना हाँ, चाहिए ना हाँ, इंसान को हाँ, जिंदगी हाँ। में। रिलेशनशिप्स के अलावा हर जगह बैकअप प्लान होना चाहिए, बट वो हर करियर के लिए है। मैं कंटेंट क्रिएशन को पेडेस्टल पे नहीं डालना चाहती कि इसके साथ तो होना ही चाहिए, बिकॉज दैट्स समवॉट वी आर ऑलरेडी, आई वोंट से डिमीनिंग, बट हम फिर एक प्रोफेशन की अगर खाली बात करते हैं ना कि इसके साथ तो होना ही चाहिए, इसका मतलब हम बिलीव नहीं कर रहे हैं उस प्रोफेशन में। तो इसलिए वो हर प्रोफेशन के साथ होना चाहिए, नॉट जस्ट दिस वन। बट अगर आप इसको अच्छे से कर रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों ने, आई मीन देयर, इफ यू टॉक अबाउट हर्ष गुजराल, कुशा कपिला, कंटेंट से ही सब कुछ बनाया है। एंड पता है क्या होता है, देन आपकी लाइफ में ना वो लीड करता जाता है फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर, राइट? Kusha started making content on Instagram. Right. Today, she's doing other things. She's into acting. Yeah, she's into movies, man. She's into movies. Yeah. She is hosting events and whatnot. तो आप, like I said again, coming back to the same topic, then आप same umbrella के अंदर ही बहुत कुछ explore कर लेते हो. तो take your content very seriously. Opportunities are endless. Yeah, yes. So अगर आप plan B भी बोल रहे हो तो same umbrella के अंदर हो सकता है. But what do you think is the darkest reality of content creation जो कि लोग नहीं समझ पाते before getting into it? It takes time. It takes time. बहुत साल, बहुत महीने, exhausting होता है कई बार. Unfortunately, you are judged by the numbers. You are treated a certain way by your numbers. एक और हार्श रियलिटी है, डार्क रियलिटी है, जो कि लिटरली सच है बट नहीं होनी चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सीन विद राइट पीपल. सही लोगों के साथ दिखना बहुत ज़रूरी है, और गलत लोगों के साथ, इवन इफ योर फ्रेंड्स, व्हेन आई से गलत मीन्स कम फॉलोअरशिप, शुड नॉट से गलत, बट ये मैं इस इंडस्ट्री की भाषा बता रही हूँ कि somebody जो लग्जरी बैग्स नहीं कैरी कर रही है और अगर मैं उसके साथ दिख रही हूँ तो कहीं ना कहीं इट इज, आई एम पुटिंग माई इमेज ऑन स्टेक. दिस इज द डार्क रियलिटी विच आई डू नॉट लाइक. सो आप, कि हो सकता है कि ये भी फेक कर रही है अपनी लाइफ को, समथिंग लाइक दैट. हो सकता है, बिल्कुल. बट अगर इफ यू आर सीन विद पीपल हु आर रोमिंग इन लग्जरी कार्स एंड कैरिंग ऑल द ब्रांड्स, तो अगर आपका घर खाली है, आपको तब भी लोग तमीज से, इज्जत से बुलाएंगे और बात करेंगे. ये एक हार्श रियलिटी है बॉलीवुड की, और ये हार्श रियलिटी है इस इंडस्ट्री की, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, विच आई डू नॉट जो लाइक. दिखता है वो बिकता है. जो दिखता है वो बिकता है, बिल्कुल. सो यू शुड नो अगेन हाउ टू सेल योर सेल्फ. बट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, क्या आपकी पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट होती है? यस, या बिल्कुल. आई थिंक your family, your relationships, you being a person emotionally, mentally, how? I want to understand. See, आई थिंक मैंने वो शैडो वर्क किया है अपने ऊपर कि आज की डेट में नहीं होती है. Me being outside the house as a content creator, I don't bring any energy back to home. But I think वो एक thick skin develop करने के बाद होता है. But yes, see, बहुत एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ. इन दिस इंडस्ट्री आप बहुत लोगों से मिलते हो हर रोज, Right. एंड हम एनर्जीज की बहुत बात कर रहे हैं आज. तो नॉट एवरीबडी इज हैप्पी टू सी यू हैप्पी, यू नो. तो आप कितने नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों से भी मिल रहे हो, तो ऑफकोर्स जब आप वो एनर्जी घर लाते हो, इट इम्पैक्ट्स योर रिलेशनशिप्स, राइट? सो डेफिनेटली वो होता है, बट अगेन आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है. टुडे आई एम फॉर्चुनेट एनफ टू बी ऑन दैट लेवल कि मैं इस दिन ही शूट करूँगी. आई एम नॉट अवेलेबल ऑन दिस डे.
It's my father's birthday. I have that privilege today. I'm at a level. No, I will not shoot. It's my father's birthday. It's my parents' anniversary. It's my brother's bachelor's, whatsoever. कुछ भी. बट आई से आपने बिल्ड कर लिया एक प्लेटफॉर्म, राइट? बट बहुत सारे क्रिएटर्स दे गेट इनटू दिस यू नो ईगो ट्रैप कि यार भाई आई हैव बिकम बिग, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज, मैं तो ये नहीं करूंगा. Wait for it. वेट फॉर इज द आंसर. Yeah. Ego will eventually bring you down. मैं बहुत लोग देखे हैं, आपने भी देखे होंगे इस इंडस्ट्री में. True. मैं हमारे इंडिया के वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट पॉडकास्टर्स, ये ईगो से हटके, बट मैं ये बोल रही हूँ वक्त बदलते ना किसी की देर नहीं लगती है. सो व्हेन यू आर हम्बल और आपके साथ कुछ गलत होता है ना, दुनिया खड़ी होती है. बट ऑन द अदर हैंड व्हेन यू आर ईगोइस्टिक, वक्त सबका बदलता है, राइट? व्हेन यू गो डाउन ना, देन दैट्स, मुझे लगता है समय की मार सबसे बुरी होती है. और लगती दोनों को है, जो हम्बल है और जो ईगोइस्टिक है. पर फिर उस वक्त पे जो दुनिया होती है ना, वो हमेशा ऑफ कोर्स उसी का साथ देगी, चाहे वो गलत भी था, यू नो. एंड द पर्सन जो राइट भी था बट ईगोइस्टिक था, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा. सो दैट इज व्हाट आई फील. एंड किस बात की ईगो यार, ऑडियंस ने आपको बनाया है. आई हैव मेट सो मेनी सेलिब्रिटीज जिनकी मैं फ़ैन थी, बट जब मैं व्हेन आई मेट देम इन पर्सन, आई हैव स्टॉप्ड फॉलोइंग देम. सीरियसली? या, बिकॉज द वे दे बिहेव, I'm sorry, I mean, one person I can take name, like literally, and I was his one of the biggest fans, and the way he treated me, I unfollowed him. And that day I realized कि आप उनको attitude दिखा रहे हो जिन्होंने आपको बनाया है. वही वाली बात है ना कि स्क्रीन पे दिखता कुछ और है, होता कुछ और है. इंसान हकीकत में कुछ और होता है और स्क्रीन के पीछे कुछ और होता है. एंड दे हैव गॉट लाइक दीस ग्रेट एक्सप्रेशंस एंड दोस फैंसी वर्ड्स फॉर द पीपल, जस्ट टू शो देम कि हाँ हम तो यू नो वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वी हैव ग्रेट नॉलेज. बट मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर आई ऑल्सो फील द सेम देयर कि कभी कभी आप किसी को इतना ज़्यादा एडमायर करने लग जाते हो, पसंद करने लग जाते हो, समझने लग जाते हो. आपको लगता है कि यार so relatable, so cool this person is, and जब आप उसको रियल लाइफ में मिलते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ही गलत था. खोखलापन है. आई थिंक यार ये फेक इन्फ्लुएंसिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है. हाउ मेनी पीपल हैव यू मेट इन योर लाइफ हु आर 110% फेक इन्फ्लुएंसर्स? Oh my God, do you want me to name? No, actually 90% of them. Seriously? Yeah. The 10% are my friends from the influencer industry. And again, I'm fortunate enough because आप attract करते हो अपने ही जैसे लोग, क्योंकि मैं बहुत real and देसी हूँ. तो yeah, the 10% of that are my friends. We go on trips together. हम influencer trips भी करते हैं, सब कुछ. But 90% of the industry रह रहे हैं पंजाबी बाग में, बोल रहे हैं जी के. क्यों? Why? Your YSL is rented, babe, I know. अच्छा, ये भी रेंट पे मिलता है? ये मेरे लिए नया था, प्लीज. ओके, तो ब्रांड का सामान भी रेंट पे मिलता है. Of course. Let's talk about this. This is यार क्यों मैं यार मजाक नहीं कर रहा, तुम मैं बहुत मुझे सीरियस बात इंडस्ट्री से कर रहा हूँ. निकलवाओगे, but yeah, मतलब this is true. You get bags, watches, shoes, You get dresses. ego on rent for a night when you rent these outfits and everything, and then you suddenly become this egoistic person. You can rent anything. People do that, and I am shocked. Why? And for whom? कुछ काम इंसान अपनी खुद की खुशी के लिए भी करता है. ठीक है, करो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है.
आपको खुशी मिल रही है बिल्कुल करो. मैं वो इंसान हूँ जो बोलती है कि अगर आपको बोटॉक्स कराना है, फिलर्स कराना है, आपको जो करना है करो, पर ईगो तो मत रखो. सही बात है. किस बात की ईगो इज व्हाट आई एम आस्किंग. अगर आप इवन इफ यू ओन दोज थिंग्स राइट, तो आपसे भी तो बड़ा कोई होगा. व्हाई ईगो? You and me, we all are working, and this is just not with influencers. There are so many PR people. Because oh my god, I'm working with I'm working with this brand. I give work to influencers. I have huge ego, but why? You're working for that brand. I am working with that brand, babe. There's a difference. You're an employer there. I am a brand partner. Don't forget that. Right. You're working for them. I'm working with them. What according to you is influencer marketing in 2026 और brands के हिसाब से what are they still getting wrong about it? Big numbers is equal to big impact. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. Please stop. Having the right set of influencers is very very important, and numbers are not everything, guys. Like reach impressions को एक तरफ करना जरूरी है या फिर वो भी बहुत important role play करते हैं? वो भी important role play करता है, but सिर्फ वो ही नहीं important role play करता. But what if we are talking about we're in a market where everything is for sale, right? Likes भी मिलते हैं, yeah, shares भी मिलते हैं, exactly, interaction भी मिल जाती है आपको, yeah, through multiple platforms. Yeah. And मुझे खुद किसी ने पॉडकास्ट में बताया अभी कुछ दिन पहले कि सब कुछ मिलता है. Even you can buy views on YouTube videos and subscribers and other things. That's new to me. But ऐसी मार्केट में जहाँ पे सब कुछ बिक रहा है, how can a person be relevant and get more brand collaborations? क्योंकि आपके डैशबोर्ड में तो सब कुछ दिखेगा ही ना. तो अगर आप बोल रहे हो कि जहाँ सब बिक रहा है तो आप वो बेचो जो नहीं बिक रहा, which is trust. Which is 400 सब्सक्राइबर में भी आप ब्रांड डील ला सकते हो अगर आपकी और आप रीच उससे ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकते हो. Wow. Right? So I will circle back to the same thing. Once you sell your trust to the brand in a way that आप अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट एक बार अर्न कर लो ना, तो आपकी ऑडियंस आपको ब्रांड से अर्न कराएगी एंड ब्रांड भी अर्न करेगा ऑडियंस से, राइट? एंड ऑडियंस इज ऑल्सो अर्निंग साइमल्टेनियसली विच इज एन एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट प्रोडक्ट. इट्स अ विन विन. बट मेहनत है उसके लिए. बिल्ड योर कम्युनिटी, सेल द ट्रस्ट टू द ब्रांड, अर्न इट फ्रॉम योर कस्टमर्स. तो वो बेचो जो कोई और नहीं बेच रहा है, विच इज ट्रस्ट. ब्रांड्स अगर मेरे 1 मिलियन है, ठीक है, एंड आपके प्रॉब्ली से 10 मिलियन है, हो सकता है कि आपने नंबर्स बाय किए हैं और ब्रांड मेरे पास आ रहा है. चलो मिलियन छोड़ दो, यू हैव 100K फॉलोअर्स, आई हैव 10K फॉलोअर्स, राइट? बट माई फॉलोअर्स आर लिटरली माई कल्ट फॉलोअर्स. और आप कोई ब्रांड डील ले आओ, मेरे एक उस रील से ब्रांड को चाहे 20,000 का ही रेवेन्यू जनरेट हुआ, बट आपकी से सिर्फ 2,000 हुआ, तो ब्रांड नेक्स्ट टाइम किसके पास जाएगा? ब्रांड को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके 100K और मेरे 10K. I think it's more about having an impact, driving more sales. Yeah. ब्रांड को क्या चाहिए? Yeah, exactly. उनको प्रेजेंस चाहिए और उनको सेल्स चाहिए, और वो जाएंगे तो उसी इंसान के पास ना जहाँ से उनको they get more sales. Actually, ROI, and I define ROI in several layers. One is the perception shift. Ki are people talking about this brand differently now? Are they viewing it differently? Are the conversations happening? Then second is कि क्या कस्टमर जो, एंड ये मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ फॉर ROI व्हेन दे से कि रेवेन्यू जनरेट हो, आई सेड डोंट ऑलवेज लुक कि सिर्फ रेवेन्यू ही जनरेट हो रहा है, वो बाय प्रोडक्ट है ऑफ कोर्स. एक और चीज़ ना ब्रांड्स नहीं समझते कि कंटेंट क्रिएटर्स आर
are meant for creating the content. बाय प्रोडक्ट है उसका सेल्स. अगर आपको सेल्स करनी है, आप सेल्स टीम हायर करो. कंटेंट क्रिएशन itself is an activity, so they are charging for that. Now, how as a content creator, one creator differentiates from the other? A perception shift. उसके content से क्या लोग differently देखना शुरू हुए हैं उस चीज़ को, उस product को. Secondly, क्या quantitative कस्टमर बेस आ रहा है कि परचेज ड्रिवन कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं, क्वालिटेटिव आ रहा है कि बस कंटेंट पीस अच्छा लगा इसलिए फॉलो कर लिया, ये इसलिए व्यूज बढ़ गए, राइट. देन थर्ड माइट बी किस तरीके का सेल्स ड्राइव हो रहा है. लाइक इट्स नॉट जस्ट ना कि लाइक आप ये भी देखो, वेबसाइट पे स्पाइक हो रहे हैं, नंबर्स नहीं हो रहे. इंस्टाग्राम पे आपको डीएम्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या कन्वर्जन रेट इन वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स. कि जो ऑफलाइन स्टोर वॉक इन है उसमें कोई बोल रहा है कि आई सॉ इट ऑन इंस्टाग्राम, राइट. देन एक रिलायबिलिटी विद द कंटेंट क्रिएटर की, मतलब कि इफ शी यूजेस इट आई विल यूज इट, राइट. एंड लास्टली एक और चीज आप ये भी देखो एज अ ब्रांड की उस क्रिएटर के साथ आप कितना रेजोनेट कर रहे हो. क्या आप एक ही बार लोगे या आप उसको बार बार लेना चाहोगे? ये है ना ROI, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट तो क्रिएटर के ऊपर भी है, सिर्फ प्रोडक्ट के अंडर नहीं है, राइट. सही बात है. सो आप इन 5 लेयर्स में आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा. नाउ ROI हो सकता है नंबर्स सेल्स में नहीं आ रहे हैं, बट आपको इंस्टाग्राम हाइप मिल गया, या आपको क्वालिटेटिव ड्रिवन कस्टमर्स मिल गए. अगर इन 5 में से कुछ नहीं मिल रहा है, देन इट्स अ रॉन्ग चॉइस ऑफ क्रिएटर. और अगर इनमें से कुछ भी मिल रहा है, यू कैन रिकंसिडर having that creator on board. Brands they have to think, like when we advise brands कि सिर्फ एक चीज मत देखो, think about these areas too. As a strategist, मुझे एक चीज बताओ, आप क्या एडवाइस करते हो फाउंडर्स को, ब्रांड्स को, अगर बजट उनका टाइट हो तो? Okay. I think cross partnerships, ब्रांड पार्टनरशिप्स, क्रॉस कोलैबोरेशंस, एंड एक फाउंडर लेड विजन होना बहुत ज़रूरी है. मतलब अगर मैं अपने ब्रांड को, सपोजिंगली मेरी कोई टीम नहीं है, तो क्या मैं अपने ब्रांड को सेल कर सकती हूँ अपनी स्टोरी टेलिंग से? वाई नॉट? आई हैव डन दैट. हाउ? Because it's my vision. If I can't sell my vision, how will I make it my reality? आइडिया तो सेल कर, आप फाउंडर लेड स्टोरी टेलिंग होना बहुत ज़रूरी है ना. अगर बजट टाइट है, कुछ नहीं है, फाउंडर को बिठा दो और उसे बोलो अपने ब्रांड के बारे में तुम कंटेंट, आई मीन द टीम इज देयर एंड एवरीथिंग, बट वी वांट यू टू बी द फेस ऑफ इट, राइट. फाउंडर ऑफ बोट, फाउंडर ऑफ पेटीएम. यस, फाउंडर लेड कंटेंट क्रिएशन ये भी काफ़ी ज़्यादा राइज में है, एंड इट्स changing the perception of people exactly. too towards believing in the person who has created the product. Exactly. My question is, if you can't sell your brand, who else will, and why would somebody sell it? But what if you are not the person who can be in front of the camera and sell your own product? There are other ways to it. AI is into picture. कुछ ना हो तो AI से करा लो. बिल्कुल. एंड उसके अलावा क्रॉस पार्टनरशिप्स करो. अगर बजट टाइट है, डोंट गो फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. क्रॉस पार्टनरशिप करो, ब्रांड पार्टनरशिप करो. फर्स्ट से यू हैव अ सैलून, आई हैव अ जिम. You be my glam partner and I'll be your fitness partner. You send me your vouchers, I'll send you my vouchers. If my clients if they want to go for any grooming service, I give them the voucher. कि अगर आप मेरे क्लाइंट हो और अगर आप जाते हो ध्रुव के सालों पे, तो आपको कंपेयर टू अदर कस्टमर्स एक बेनिफिट मिलेगा, इतना % ऑफ मिलेगा, या ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा. सिमिलरली योर क्लाइंट्स, अगर वो आपके क्लाइंट्स हैं, तो एज कंपेयर टू अदर क्लाइंट्स आई विल गिव देम ऑफ ऑन द मेंबरशिप और मे बी 1 month ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, राइट. सो इट्स अ ब्रांड पार्टनरशिप फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड. It's a B2B concept. Focus on that. Don't go to influencer marketing. Don't put your money into anything if the budget is tight. I think it's about choosing the right approach. Yeah, strategy again. Strategy,
फॉर what your product is all about. प्रोडक्ट डिस्कवरी बहुत ज़रूरी है. नोइंग योर प्रोडक्ट, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. Why are you selling it? Whom are you targeting? You know, what problem are you solving? It's very, very important. आपके हिसाब से क्रिएटर्स को आज की डेट में किस तरीके की स्किल्स डेवलप करनी चाहिए टू बी बेटर क्रिएटर्स, स्टे रेलेवेंट एंड फ्यूचर प्रूफ? स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी चाहिए डेफिनेटली. आपके मंथ ऑन मंथ आपकी स्ट्रैटेजी चेंज भी होगी. आएगा कहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना अवेयरनेस से. यू कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, यू हैव लर्नड इन अ पर्टिकुलर मैनर, इन अ पर्टिकुलर वे. मैंने नहीं सीखा. मैं तो आया आर्ट्स बैकग्राउंड से था, या आई वॉज अ लॉयर और आई वॉज डॉक्टर, राइट? मुझे नहीं पता कि स्ट्रैटेजी कैसे बनती है. मुझे ये पता है कंटेंट कैसे बनता है, राइट? तो मैं कहाँ से वो स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा? 3 तरीकों से आप वो स्ट्रैटेजी लेके आ सकते हो. और मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाना कॉर्पोरेट में नहीं सीखा. ओके. आई डोंट विश कि कोई मेरे तरीके से सीखे, क्योंकि मैंने धक्के खा के सीखा है. मैंने पहले बहुत लोगों को पे किया है और वो मेरे विजन को इनटू द लाइफ नहीं ला पाए, तो अब जाके ये मैंने बहुत ठोकरें खा खा के तब सीखा है. अगेन, इंस्टाग्राम, इंटरनेट इटसेल्फ इज सो वेल वर्स्ड कि आप जो मांगो ना चैट जीपीटी से या एआई से, वो आपको बना के देगा. बहुत ईजी हो गया आजकल. तो आई एग्री. तो yes. तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आप उसको ये बोलो कि ये मैं कंटेंट बनाता हूँ, मेरा बैकग्राउंड ये है, इतना टाइम मुझे हो गया, मेरे को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, मेरे को मैं हूँ तो विमेन ब्यूटी क्रिएटर, बट मेरी प्रोफाइल पे मेन रेशियो ज़्यादा बढ़ रहा है, या कुछ भी. अब मुझे चाहिए कि थोड़ा सा मुझे मेरा टारगेट ये है, दिस इज़ वेयर आई वांट टू रीच, प्लीज़ क्रिएट अ स्ट्रैटेजी फॉर मी. आजकल तो सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है. यू डोंट इवन हैव टू हायर एनीबॉडी. तो किसी एजेंसी के पास नहीं जाना, कुछ नहीं करना, जस्ट a click away. Nobody right? will treat your baby as their own. Nobody will treat your brand as their you own. you run a company. Yeah. जो कि लोगों की मदद करता है. But growth I में. stand out. This is what I sell. I do not sell numbers. I only sell ideas, strategies, trends. I tell them how should you be different. अगर बजट टाइट है तो कोई और पीआर एजेंसी बोलेगी हम सस्ते में 10 क्रिएटर्स ला देते हैं. मैं बोलूँगी मैं दे ही नहीं रही हूँ क्रिएटर्स. मैं आपको बिना पैसे के. एक और चीज़ है ना, आई जेन्युइनली ट्रीट माई क्लाइंट्स ब्रांड्स एज माई ओन. वाई? अगर बजट टाइट है तो मैं बिना पैसे के, मुझे तो मेरी फीस मिल रही है ना, राइट? I will definitely recommend them something which is a win-win for them. वो रिटेनर पे रखेंगे आपको. पर आपको क्या लगता है, यार रिटेनर तो अभी पता नहीं दिया है नहीं दिया, छोड़ो वो तो बात की बात है. इस महीने में अपना तो आ ही रहा है जो फीस है, कंसल्टेंट फीस, बट 10 क्रिएटर्स में से भी तो आधा बचा लेंगे. कोई बात नहीं, 20,000 बजट है, हम 2,000 वाले क्रिएटर्स देते हैं. 2 लाख बजट है, हम 10,000 वाले क्रिएटर्स देते हैं, उसमें से भी ये लोग आधा बचा लेते हैं. वाई? आप उसका 0 रुपी अपार्ट फ्रॉम योर फीस करके तो देखो, वो आपको 3 महीने के रिटेनरशिप पे रख लेगा. दैट्स हाउ यू सेल योर सेल्फ. हमेशा किसी को काट के नहीं अपना पेट भरना ना, है ना? आपका तो भर ही रहा है, पर उसका क्यों काटना है? डोंट डू दैट. सही बात है. ये काटना सुन के इट वाज जस्ट लाइक something else. Yeah, of course. कहना बहुत कटा है जिंदगी में. No, I am an किसी का onion. काटना है. I act like an onion. Like if अगर आप मेरा काटोगे, I'll give you tears. जिसने काटा उसी को आंसू. So ये अच्छा था. I really liked it. I like. मैं कहूँगा कि सोचने का तरीका और नजरिया बहुत अलग है. Of course, yeah. That clearly shows कि धोखा तो बहुत मिला है जिंदगी में. बिल्कुल यार, बिल्कुल. What is your take on cheating generally before we come to an end to today's episode? My take on cheating is cheating occurs in head before it occurs in bed.
Okay, so if you come to me and tell me कि मिलने ही तो गया था, बात ही तो की थी, सोया तो नहीं ना, I didn't sleep with her, I didn't do anything. So my question is, there are two types of cheating, one is emotional, one is physical. Cheating दोनों ही है. दूसरी चीज, अगर आप किसी ट्रॉमा को स्टेज 1 पे पकड़ते हो तो आप तभी से ट्रीट करने लग जाते हो, आप उस ट्यूमर का स्टेज 4 तक आने का वेट नहीं करते. तो अगर मैंने आज आपको झूठ बोल के किसी से मिलते हुए देख लिया तो मैं उस दिन का वेट नहीं करूंगी कि जब कुछ हो जाएगा तब एक्शन लेंगे. आई विल टेक माई एक्शन देन एंड देयर एट स्टेज 1. द मोमेंट you realize that the emotional cheating is also happening, now you should move out. Somewhere the other person also knows और वो बर्दाश्त करता जा रहा है, कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी तो बिल्ट हो रही है ना. तो ध्रुव, इट्स मोर देन टॉक्सिक ना, मतलब आप अंडररेट कर रहे हो उसको टॉक्सिक बोल के. Then what is it? If it is not just it toxic. is, I don't know, it is something that I don't want to be in. It is as simple as that. मैं इसको नाम भी नहीं देना चाहती. It is traumatic if I may call that. आप एक ऐसे रिश्ते में जब होते हो ना तो आपको ये पता चलता है, अगेन जैसे मैंने कॉर्पोरेट की बात बोली, कि आपके नॉन नेगोशिएबल्स क्या है. आपको अपने नेगोशिएबल्स तो पता है कि आपके नॉन नेगोशिएबल्स जो आपको भी नहीं पता होते ना, जो सप्रेस्ड होते हैं क्योंकि आप तो कभी उस सिचुएशन में ही नहीं गए, आपको वो पता चलता है कि यार ये नहीं पता था मुझे कि मुझे ये चीज़ इतनी ट्रिगर कर सकती है, ये नहीं पता था मुझे कि मुझे ये तो मैं झेल ही नहीं सकती, बिकॉज आपके साथ कभी हुआ ही नहीं ना. I'll say if a person knows कि उसके नॉन नेगोशिएबल्स क्या हैं, I think that is one of the biggest achievements Of course. of their life. That's why I said it's good to. They are very clear about it कि भाई Yeah. ये चल जाएगा पर ये नहीं चलेगा. No matter what the situation is or I no am matter not. what might come, Yeah. ये मेरे नॉन नेगोशिएबल्स हैं. Yeah. और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान अपने नॉन नेगोशिएबल्स को नेगोशिएबल में कन्वर्ट कर दे तो भी वो कंफ्यूज्ड है. आई थिंक Confused नहीं है वो. stay strong. They land up into a very big trauma. Been there. I am healed. I have done my shadow work. बट जब होता क्या है ना, क्योंकि एक टाइम के बाद आके आप क्वेश्चन करते हो खुद से कि हाउ कुड यू डू दिस टू योर सेल्फ बानी. तुझे उसको नहीं पता था, तुझे तो पता था कि तू ये नहीं, यू नॉट ओके विद दिस. ट्रू. व्हेन यू, आप अपने ही सगे नहीं हो कि आपने अपने ही नॉन नेगोशिएबल्स को नेगोशिएबल, तो आप उस इंसान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ, राइट, कि यार बॉस मैं तो नहीं, right? It is very, very important because eventually I think it helps you a lot. It shapes you again very differently in a very, I mean आप वो इंसान बन जाते हो. Like today I am so happy with wherever I am because एक तो आपने वो बैटल फाइट की है जो आपको भी नहीं पता था आपके अंदर हिम्मत है. True. क्योंकि आपको कभी इस बारे में तो पढ़ाया भी नहीं गया. सो आप गिरे, आप उठे, आप गिरे, आप उठे, बट that ability to say no, I will not tolerate this, it is very empowering. मुझे लगता है जो चीज़ आप धक्का खा के सीखते हो ना, राइट, Yeah. वो आपको जिंदगी में बहुत सारी चीजें सिखा देती है. बिल्कुल. I think Whatever you learn the hard way, it stays with you forever and ever. yeah you Because you understand कि भाई मुझे यहाँ नहीं जाना. and you start respecting yourself more. It's not Yeah. just about respecting yourself, Yeah. but it is also about respecting your choices. Exactly. And there is no one in this world जो कि आपको आके ये बताए कि यार तुम ये सही कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, when You know know yourself. Yeah. And पता है ध्रुव, कितनी सारी गर्ल्स हैं जो when I do the Q&A, ask me anything. Yeah. These girls then they'll come ki, you know, my boyfriend cheated on me, but you know I am stuck in a relationship because you know he provides me this, he provides me that, and I always tell them कि ना लोग ना खुद से झूठ बोलते हैं, खुद को excuses देते हैं कि अरे उसने cheating तो की but वो ये भी तो करता है. But I really want, and I always tell these girls, क्योंकि छोटी बच्चियां हैं, right, they're also figuring out their life. True. Right, that a cheater with a Ferrari
is still a cheater with a Ferrari. Agree. Completely Right? agree with you on that. He is a cheater with being a founder or an entrepreneur. He's a cheater with a certain award. I think heartbreaks are very important in life. है ना? Yeah. Pain is important. Pain is somewhere. important. It shapes you, makes you a very different person. I am blushing while I'm saying this because today I am in, मुझे लगता था, लोग मुझसे पूछते थे कि सोलो ट्रिप पे जाती, मैं बोलती थी यार खुद के साथ बोर नहीं हो जाते तुम लोग क्या? सेल्फ लव पता ही नहीं था मुझे. It's fun. Exactly. But after that, when I started spending time with myself, I did 3 solo trips. Today I love myself. मुझे हर ट्रिप ऐसा लगता है या फैमिली के साथ हो या सोलो करना है, राइट? आई एम माई बिगेस्ट cheer leader. I talk to myself. I love myself so much. I love this girl, whatever she has built, whatever she has gone through, and whatever I mean, I'm so proud of her that she said no. She walked out with dignity, you know? So it is very important and empowering. You call it cheating, you Yeah. call it betrayal, you call it whatever you want to call, Yeah. you call it pain. Yeah. But I call it empowerment. Yeah. I think that's the power of growth mindset. Yes. Right? Yes. आप हर तरीके की नेगेटिविटी को पॉजिटिवली ही अडेप्ट करना सीख बिल्कुल, जाते हो. बिल्कुल. आप अपने फेलियर्स को भी सक्सेस में कन्वर्ट कर देते हो एक टाइम के बाद. मतलब दैट इज द पावर. Yeah. I'll say. Yeah. How you look at a situation, how you react to it. I completely agree with you on that यार. मतलब इंसान की अगर सोच बदल जाए, सोचने का तरीका बदल जाए. But have you तो- been heartbroken in life? हम वहाँ नहीं जाते. But yes, I have had this many times. It has happened. Okay. Right? And you fall for the same trap again and again. Life Why do में- you think that happens? नहीं, because Oh, with the You- same person. Yeah. maybe with the same person, or maybe you might fall in the similar trap with Pattern, another orbit. Yeah. orbit. But आपको वो एक point आने के बाद you have to break the chain, because sometimes you understand things बहुत जल्दी, और कभी कभी वही सेम चीज बार बार होने के बाद भी आपको टाइम लग जाता है समझने में, Yeah. क्योंकि वो पैटर्न छोड़ना और तोड़ना बहुत मुश्किल है. मुश्किल होता है. बिकॉज आपको लगता है कि मी बीइंग माई सेल्फ Yeah. इज मोर इम्पॉर्टेंट टू सेव दिस रिलेशनशिप, राइट? और वो सेम पैटर्न हो रहा है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं चेंज इज द कांस्टेंट वाली बात को नहीं अडेप्ट किया. आपको लगा कि मैं वैसे ही कोशिश करता रहूं. बट आई थिंक आपको खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है, अपने माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, एंड एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है खुद को. नहीं तो आपके साथ वही सेम चीज़ें दोबारा होती रहेंगी. Yeah. लोग कहते हैं ट्रस्ट करो, बिलीव करो. भाई कभी कभी थोड़ा बहुत डाउट करना भी ज़रूरी है. हाँ, and I think Question करना भी जरूरी yeah. Trust बहुत ओवर सेल कर दिया है लोगों ने ना. भरोसा ओवररेटेड है, अंडररेटेड नहीं है. और भरोसा सबसे मुश्किल है. तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ना. भरोसे में सबसे ज्यादा दर्द है, सबसे ज्यादा परेशानी है. आप किसी पे भरोसा करते हो, सबसे ज्यादा परेशान तो आप होते हो, कहीं अरे मेरा भरोसा ना तोड़ दे. मत करो ना. Why? Right. You're absolutely right. Yeah. Lastly, let's finish it here. One life lesson that you have learned the hard way, जो कि आपको लगता है कि 2026 में, as you said, सबको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Very important. मेरा लाइफ लेसन भी है, एस्ट्रोलॉजिकली भी दिस इज ट्रू, बिकॉज आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी. Be consistent and disciplined. Wow. Take one step at a time, one day as it comes. हर रोज बस उस दिन सोचो ये काम करना है. That's it. Be consistent. That's it. और तुम्हें कोई नहीं हरा सकता. तुम्हें तुम कोई नहीं हरा जीतोगे. सकता. Yes. Thank you so much, Bani.
Thank you. for being here. आपने आके आज हमारे प्लेटफॉर्म की शोभा बढ़ाई. Oh my God, But that. I'll say thank you so much. This was a fun Yeah. and a very insightful conversation, which will be adding a lot of value to people's lives, Yeah. personal, professional, and to all the creators out there. जिनको कभी कभी ऐसा लगता है लाइफ में कि यार what next, plan Yeah. B होगा नहीं होगा. Plan B is here. Hi. So thank you so much, Bani, for being here. Yeah. Thank you. Thank you for having me.